Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is resources in teaching of English, and this one is the part of our DLED second year teaching of English. हमारी teaching of English की DLED second year की ये fourth unit है, and in this unit we are going to be familiar with the different kind of resources which we are used in the which we are going to use in teaching of English while teaching, and how these resources are helpful for us, what are the advantages, what are the disadvantages of using these resources, and how these resources are make our teaching of English as a very convenient to the student, and for as a teacher how to make our teaching very effective. So priorly we are talking about the introduction in which we have to going to be familiar with the word TLM, and this is the acronyms for the teaching learning material. Teaching पढ़ाए जाने के लिए, लर्निंग अधिगम के लिए, मटेरियल मतलब सामग्रियां. सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर द टेलर्ड मटेरियल बाय द टीचर और by any expert. By using them in the classroom we can make our teaching very effective. They can be of different shape, different size, but their common purpose is always making our teaching very much beneficial, and the learning for the student is very easy for the learners. So while teaching, the teacher is also used many kind of learning materials, and like counting blocks हो जाएंगे. So that learning materials which is used in a classroom, that is known as resources. They are tangible, we can touch them, and these help to make our learning very easy. So student learning support, यही बात मैं आपको अभी तक कह रही थी कि अगर if you are using the teaching learning materials, it will support the learning of the learners, by which they have the more opportunity to learn. They make their self very skillful, and these are the concrete material. That's why they do not have to do the imagination. They can make them or make our learning very much logical with that. लेसन स्ट्रक्चर, अब लेसन की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? वी ऑल आर वेरी मच अवेयर विद द लेसन प्लान. While making the lesson plan, we have to deal with the many kind of theoretical concepts, like we have to write down the journal objective, we have to write down the specific objective. After that we have to collect the learning or teaching aids which we are going to use in our classroom. So while making our lesson structure, lesson plan, we have to include some material by which we can make our class very much skillful, और उनसे नॉलेज भी जो क्या हो जाए बच्चों की इनहेंस हो जाए. तो उस लेसन की स्ट्रक्चर में बनाते वक्त आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? वी हैव टू मेक सम मटेरियल, वी हैव टू क्रिएट सम मटेरियल, और वी हैव टू टेक सम मटेरियल इन द क्लासरूम विद आवर सेल्फ टू मेक आवर टीचिंग इफेक्टिव, एंड by which the function of learning of student is very much easy for the learner. Next, differentiation of instruction. What is the differentiation of simple instruction and the instruction which is giving with the help of learning materials? देखो, अगर मैं आपको कोई चीज दिखा के काम करा रही हूँ, like if I have to teach you about pen, what are the characteristics of pen? If I'm showing you the pen, तो आपको काफी इजी हो जाएगा कि पेन होता कैसे है. देखो, इसके एक निब होती है जिसमें से आपके पास शाही आती है, इंक आती है जिसे आप राइट डाउन करने में हेल्प करते हो, ग्रिप बनती है. ठीक है, इसके लिए आपके पास कई बार थोड़ा सा सॉफ्ट पैड्स भी लगे होते हैं हमारे पेन्स के ऊपर कि हमारी ग्रिप अच्छी जाए. और इफ यू हैव टू राइट द मोर एंड मोर, तो आप जो है कंफर्ट भी फील करो. So there is a difference between the normal instruction and the instruction which is used with the teaching learning material is that, so with the help of teaching learning material we can make the child more logical, and in this instruction we can make our child active. So while teaching them we have to activate their mind. तो हम सबसे पहले उन्हें सक्रिय बनाने का कार्य करेंगे. नेक्स्ट है एक्वायरिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल. अब अक्वायर कैसे करोगे? दीज आर द वैल्यूएबल थिंग्स विच आर हेल्पफुल, विच आर हेल्पिंग इन द टीचिंग. सो आप कई चीजें, ये रिसोर्सेज कहीं कहीं से कलेक्ट कर सकते हो. सो हमारे पास सबसे पहले एज अ टीचर हमारे पास कुछ टूल बॉक्स होना चाहिए, जिसे हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं किट के नाम से. टूल बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास कुछ मटेरियल या एसेट्स होने चाहिए जिनके ऊपर आप कार्य कर सको. सो
आप एक्वायर कहाँ से कर सकते हो? वैसे तो आप अपने स्कूल से कर सकते हो, दे कैन बी सेल्फ मेड भी हो सकते हैं, और दे कैन बी कॉन्क्रीट मटेरियल ऑल्सो, जिससे कि हमारी लर्निंग जो है सूटेबली चल सके। तो जरूरी नहीं है आपको हर बार मार्केट से ही खरीदने हो, वी कैन एक्वायर फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, लाइक इट्स मे बी, इट कैन बी you, it can be your school, it can be the earlier, it can be the child, or it can be the surrounding material which are used in a classroom. नेक्स्ट हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट प्रैक्टिस नोटबुक्स। अब टेक्स्ट प्रैक्टिस नोटबुक्स क्या है, सबसे पहले जानो टेक्स्ट बुक क्या होती है। देखो टेक्स्ट बुक क्या होता है, हमारे पास एक, इट इज अ काइंड ऑफ बुक जिसके अंदर हमारा पूरा कंटेंट गिवन होता है। कंटेंट के साथ साथ आपके पास इवेल्युएशन के टूल गिवन होते हैं, एंड इस टेक्स्ट बुक के यही फीचर्स हैं कि ये आपको और बच्चे को उसकी प्रायर नॉलेज से न्यू नॉलेज में जोड़ने का काम करती हैं। इट विल बी मेक द कनेक्शन। ये एक टीचर के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क है कि आपको कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। सो वी कैन से दैट टेक्स्ट बुक इज अ काइंड ऑफ बुक इन विच द whole content of that regarding class is included, the evaluation techniques are included, and it is a criteria for the learners and also for the teacher what to teach, and it is also the criteria for the learner what to learn। ठीक है, तो हमारी टेक्स्ट बुक क्या है, हमारे लिए एक गाइडेड मटेरियल है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता है कि व्हाट पाथ यू हैव टू फॉलो। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक क्या है, अब टेक्स्ट बुक के क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो इट कवर ऑल द सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस इसके अंदर गिवन होगा। अगर कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको अपनी कक्षा में यूज करना है तो वो भी इस टेक्स्ट बुक में गिवन होते हैं। इट विल फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव, आप क्लास शुरू करने से पहले जो भी आप ऑब्जेक्टिव लेके चलते हो उसे फुलफिल करेगा। इट विल फैसिलिटेट अ टीचर ऑल्सो अ स्टूडेंट, आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फैसिलिटी इन द सेंस आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, आपके पास इवैल्यूएशन टेक्निक एक जगह गिवन है, आपके पास शोइंग मटेरियल वहां पे गिवन है, तो आपकी लर्निंग और टीचिंग को फैसिलिटेट करता है। अब फर्स्ट इसका क्राइटेरिया है वो है करिकुलम। तो हिल्डा टाबर डिफाइंड करिकुलम एज अ कंटेनिंग अ स्टेटमेंट दैट एम्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके करिकुलम में क्या है, इसका उद्देश्य मेन जो एम है वो क्या है, हमारे जो गिवन जो स्पेसिफिक उद्देश्य हैं उनके फुलफिलमेंट करना। इंडिकेट सम सिलेक्शन, जिसके अंदर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, आपका जो भी कंटेंट रहेगा यू हैव टू ऑर्गेनाइज इन दैट सिलेबस एंड मैनिफेस्ट सर्टेन पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और आपके पास जो डिफरेंट पैटर्न है लर्निंग और टीचिंग के आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम, वी कैन मेक आवर ऑब्जेक्टिव and we can fulfill the objective with the help of curriculum, because in the curriculum our content is given, pattern of learning is given, teaching learning support is given, and evaluation and evaluation and outcome is also given. So curriculum refers as a lesson academic content taught in a school in specific course or a program। अगर आपको ये भारी भरकम लाइन याद नहीं हो रही है तो 3 अक्षर मैं आपको बताऊंगी, वही हमारा करिकुलम होता है। और my students are very well aware with these 3 terms. Curriculum include curricular. Curricular means the content we have to learn, the content we have to deliver as a teacher. नेक्स्ट आता है हमारा को करिकुलर। को करिकुलर में आता है हमारी वो एक्टिविटीज जो हमें अपनी कक्ष में परफॉर्म करनी है। और थर्ड आते हैं हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये तीनों चीजें मिलके हमारा करिकुलम क्रिएट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मैंने आपको अभी बताया है, जिसके अंदर पूरी नॉलेज, पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरा कंटेंट, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए गिवन हो, बैक एक्सरसाइजेस गिवन हो, वही हमारी क्या कहलाएंगी, टेक्स्ट बुक कहलाएंगी। सो इट इज अ काइंड ऑफ बुक इन विच द कंटेंट of certain subject, the knowledge of that certain subject, and it will build the understanding of the learner, and textbook also have the practice questions in their back sides. नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। एडवांटेजेस की बात करूँ तो पूरा स्ट्रक्चर्ड सिलेबस आपको एक जगह से मिल जाता है, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन होती हैं, क्योंकि जब भी हमारा करिकुलम डिसाइड होता है तो कोई एक पर्सन उसे डिसाइड नहीं करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ एक्सपर्टीज आर इंक्लूडेड हु आर डिसाइडिंग आवर करिकुलम। क्वालिटी बना के रखती हैं, इट प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, और हमारे लर्निंग रिसोर्सेज के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हैं, एंड दे आर efficient, it will increase the efficiency of the learner and the teacher also। और अगर लिमिटेशन की बात करूं तो द स्टूडेंट्स आर बाउंडेड, टीचर आर ऑल्सो बाउंडेड कि हमें इसी बाउंड्री के अंदर पढ़ाना है, आप इससे बाहर नहीं करा सकते हो।
और लिमिटेशन ये है कि समटाइम करिकुलम इज वेरी वास्ट, जिसकी वजह से आपके टेक्स्ट बुक जो है वो भी काफी हैवी हो जाती हैं, जिससे कवर करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव द बर्डन टू कवर ऑल द सिलेबस एंड ऑल द कंटेंट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। एंड समटाइम ये भी है, हम उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स नहीं होती कि हम उन्हें क्या कर सकें, फॉलो अप कर सकें। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ रीडिंग टेक्स्ट बुक। क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो मेंटल सिमुलेशन बढ़ता है। जो बच्चे हैं जैसे डिमेंशिया या एल्जाइमर और डिमेंशिया आपने उरी मूवी में भी देखा होगा, आई थिंक मुझे नाम तो याद नहीं है उनका, जो द मेन रोल प्ले कर रहे थे विकी कौशल, उनकी मम्मी को एल्जाइमर था। तो एल्जाइमर क्या होता है, जिसके कुछ समय के बाद अपनी मेमोरीज को आप लॉस करना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसे ही जब बच्चे बहुत सारी लर्निंग के बाद अपनी लर्निंग को लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बुक से आप उस लर्निंग को क्या कर सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें पजल्स वगैरह गिवन होती हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो। स्ट्रेस रिडक्शन, अगर आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। जैसे अगर हम बहुत सारे पीजी कोर्सेज की बात करते हैं तो वहां पे ना उनके पास टेक्स्ट बुक ही नहीं होती, उन्हें जस्ट एक करिकुलम या सिलेबस गिवन होता है कि बेटा आपको यहाँ से लर्न करना है, और हमारे पास एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक ना होने की वजह से हम 10 तरह की बुक में से छानबीन करते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन बिल्ड आवर कंटेंट। तो ये भी है कि आपका स्ट्रेस रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि आपके पास रिटर्न है सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एक्विजिशन कर सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज मिलेगी एंड वोकैबुलरी एक्सपेंशन इज ऑल्सो इनहेंस्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। मेमोरी इंप्रूवमेंट होती है, फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है, और राइटिंग भी आपकी बेटर राइटिंग स्किल होती है क्योंकि बहुत बार हम टेक्स्ट बुक में देख के बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। जैसे नोट्स मेकिंग की बात करूं, अगर आप पीपीटी से या फिर यूट्यूब से नहीं पढ़ोगे तो आप क्या ही कर रहे होगे, आप अपनी बुक उठा के अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर रीडिंग कर रहे होंगे। रिसर्च स्टडी ऑन टीचर्स पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, मतलब उनके पास टीचिंग एंड लर्निंग उन्हें जो भी करनी होती है वो अपने टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। अब इसने एक चीज और कहा है कि क्या रोल ऑफ टेक्स्ट बुक ही है टीचिंग एंड लर्निंग में, या इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हो। सो वी हैव मेनी काइंड ऑफ बुक्स, लाइक प्रैक्टिस बुक्स हमारे पास है, रेफरेंस बुक्स हमारे पास होती हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हो। तो प्रैक्टिस बुक क्या होती है हमारे पास, वो किताबें या वो बुक्स जिनमें आपकी टेक्स्ट बुक से हटके कोई चीजें गिवन होती हैं। तो प्रैक्टिस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रैक्टिस बुक्स के अंदर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन होंगे। जिसके अंदर आप क्या कर रहे होगे, आप उन चीजों को सॉल्व करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होंगे। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कैन सर्व फॉलोइंग पर्पसेस। क्या हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, वे ऑफ यूजिंग मटेरियल, कि आपको क्या ही आपकी कक्षा में सामान यूज करना है, स्रोत यूज करने हैं, वो पूरा गिवन है। फीडबैक आपको यहीं से मिल जाएगा। प्रैक्टिस बुक में या फिर टेक्स्ट बुक में हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर गिवन होते हैं, उन्हें बच्चा अगर टाइम पे प्रैक्टिस करेगा तो वो अपनी फीडबैक खुद से भी ले सकता है। और अगर मैं मटेरियल्स की बात करूँ तो उनकी फीडबैक भी मिल जाएगी कि दीज आर एफिशिएंट और नो। To keep a record of addition, deletion, supplementary material, teacher may have used with the material. आप क्या ऐड कर सकते हो, क्या नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये सारा गिवन होता है। टू असिस्ट अदर टीचर इन यूजिंग द मटेरियल, और हम दूसरे जो टीचर्स हैं उनको असिस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग में बी अ फॉलोइंग फॉर्म्स। अब आती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है किसी चीज की ऑब्जर्वेशन करना या किसी चीज को लर्न करने के लिए चीजों को ऑब्जर्व करना बाय इम्पीरिकली का मतलब अपने सेंसेस प्रयोग में लाके। सो ऑब्जर्वेशन क्लासरूम विजिट टू सी हाउ टीचर यूजेस टेक्स्ट बुक एंड टू फाइंड आउट मटेरियल इन्फ्लुएंस द क्वालिटी। यहाँ क्या कर रही हैं कि मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि जब किसी कक्षा में कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो आप वहां पे जाके सरप्राइज विजिट कर सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो जो अध्यापक है वो अपनी चीजें सही से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। feedback session we can take and we can discuss the experiences and after that we can write down the report एंड इसके बाद उस रिटर्न रिपोर्ट को रिव्यू कर सकते हैं, किसने लाइक किया है, किसने डिसलाइक किया है, कितने लोग एग्री करते हैं, और इसमें स्टूडेंट अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा आपको एक जो एक्टिविटीज थी उनसे पता चल जाएगा कि आपकी टीचिंग अच्छी रही है या नहीं रही है। तो आफ्टर दैट टीचर कैन बिल्ड देयर कैपेसिटी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है हमारा बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक चिल्ड्रंस लिटरेचर इन द क्लासरूम, पिक्चर, पोएम, बुक्स,
स्टोरी, सॉन्ग्स। देखो इन हेडिंग से डरना नहीं है, मैं बहुत कॉमन बात कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको टेक्स्ट बुक बताया, उसके बाद जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिस बुक के बारे में थोड़ा सा बताया है, एंड आफ्टर दैट मैंने आपको मॉनिटरिंग बताया कि मॉनिटरिंग क्या होती है। भाई ऑब्जर्वेशन होती है, आप कक्षा में जाके चीजों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, मटेरियल यूज किया है नहीं किया है, उसके बाद आप अपने लिटरेचर लिख सकते हैं, उसको रिव्यू करा सकते हैं। किसी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो बच्चे कमेंट करके अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बियॉन्ड क्लासरूम क्या है, ये हमने ना फर्स्ट ईयर में मैथ्स पढ़ा था, मैथ्स एवरीवेयर, मैथ्स बियॉन्ड क्लासरूम। तो इसमें ये है कि एनसीएफ ने ये कहा है, क्योंकि देखो मैं ये चीजें क्यों बता रही हूँ या हम बियॉन्ड क्लासरूम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये सारे कार्य करने पड़ रहे हैं कि हम अपनी कक्षा से बाहर जाके भी चीजों को सीखें। नहीं अगर आपकी मदर टंग होती तो आप घर पे भी बोलते रहते हो, तो सीखने की जरूरत ही नहीं थी। तो एनसीएफ कहता है टॉक अबाउट टेकिंग टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, रिलेट दैट कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक विद द रियल लाइफ सिचुएशन। फर्स्ट यही है कि अगर कोई भी चीजें आप सीख रहे हो तो उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ो। टीचर ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड द राइट लिटरेचर, जो राइट लिटरेचर है टीचर उसे ढूंढते ढूंढते बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप बच्चों को जब भी पढ़ाओ तो उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, एंड आफ्टर दैट हमें स्ट्रेटेजीज के साथ उन चीजों को पढ़ाना है। और जो बच्चों का लिटरेचर है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बच्चों का कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हो सकती है, कुछ इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हो सकती है। और हमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को प्रोवाइड करनी है कि जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं दैट विल टीच द लर्नर्स एंड दैट विल आल्सो लव द लर्नर्स। एम बॉयड, मॉन्टगोमरी, डी पैटरसन, जशकॉग, एरिक लिटरेचर, इसने इन्होंने क्या कहा है, ये नाम से मत कंफ्यूज हो, ये किसी लिटरेचर राइटर का नाम है, और उन्होंने क्या कहा है कि अगर हमें इल्यूमिनेट करना है द पाथ ऑफ इंग्लिश लर्निंग तो हमें सबसे पहले बच्चों के अंदर एक्सपीरियंसेस एनहेंस करना पड़ेगा। आप बहुत सारे लोगों की बात सुनते हो कि व्हाई वी आर नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश, वी आर नॉट प्रैक्टिसाइजिंग, गलत बोलो पर बोलो। तो अगर हम एक्सपीरियंसेस से देखते हैं तो स्टूडेंट की लर्निंग लिटरेचर के लिए बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वही एक्सपीरियंसेस हमें ज्यादा एक्सप्लोर कराने का काम करते हैं, और एक्सप्लोरेशन के साथ साथ आप न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, जिससे थिंकिंग भी इनहेंस होती है। और लैंग्वेज टीचर के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि शी और ही हैव टू बी वेरी मच अवेयर विद द पोटेंशियल ऑफ बुक्स, कि बुक्स कहाँ पे क्या हेल्प कर सकते हैं। तो ही और शी हैव टू चूज बुक्स अकॉर्डिंगली, इसीलिए उन्होंने अपने जो किताबें थी उनका चयन उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो राइट बुक है दैट विल गिव यू द स्कैप फोल्डिंग, उन बच्चों को बहुत स्कैप फोल्ड कर सकती हैं जिन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, और आपकी टीचिंग को भी इनहेंस कर सकती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि बियॉन्ड क्लासरूम में क्या है, जब आप अपनी कक्षा से बाहर निकल के कोई चीजें सोच रहे होते हो, जैसे एनसीएफ ने कहा है कि वी डू नॉट हैव टू मेक द चाइल्ड बाउंडेड इन द बाउंड्री ऑफ करिकुलम, इनसे बाहर भी इंस्पायर करो, एक्सपीरियंसेस दिलवाओ, बच्चों की मोटिवेट करो कि वो अपनी थिंकिंग इनहेंस करे, लैंग्वेज को इनहेंस करे, जिसके लिए प्रैक्टिसाइजिंग करें, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सके, एंड बच्चों को जस्ट नॉट ओनली द टीच एंड लव दैट चाइल्ड। तो इससे भी क्या होगा, जो बच्चों की एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों से, बच्चे उस पर खरे उतर जाएंगे। तो इनका भी क्या कहना है कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बच्चों का लगा लो या लिटरेचर का लगा लो, तो यहाँ उनका ये कहना है कि आपको ऐसे टीचिंग लर्निंग करनी है जिससे बच्चों का जो करियर है वो बढ़िया रहे और जो स्टूडेंट है वो लर्न अच्छे से कर पाए। वाई कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, अब चिल्ड्रन लिटरेचर क्या होता है, दैट लिटरेचर विच इज क्रिएटेड बाय चिल्ड्रन। जैसे अगर मैं बच्चे को बोल दूं कि आपको आपके रिस्पॉन्सेज, या मैं कोई भी तीन सिंबल्स दे देती हूँ या तीन कैरेक्टर दे देती हूँ और बच्चों को ये बोलना है कि, और या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट दे सकते हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेक द स्टोरी, तो उस पे बच्चे जब अपने बारे में लिख रहे हैं, बच्चे खुद ही फैसिलिटेट हो रहे हैं, तो वो जो लिटरेचर कहलाएगा वो चाइल्ड लिटरेचर कहलाएगा। हाउ टू चूज अ थीम, सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट विद द फेमिलियर फेवरेट वर्क ऑफ लिटरेचर। सबसे पहले आप जानो, नॉलेज गेन करो कि बच्चे का फेवरेट लिटरेचर पैटर्न है क्या, उससे करिकुलम का कॉन्सेप्ट बनाओ, क्रिएट करो, कोरिलेट करो एंड मेक द प्लान। आफ्टर मेकिंग द प्लान पेरेंट्स वगैरह से या जो भी चैलेंजेस आते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर सकते हैं। सोशल एंड इमोशनल बेनिफिट्स, अब हमने अपना करिकुलम जो है, अपना लिटरेचर तैयार कर लिया है, क्या फायदे होंगे। सबसे पहले तो जो रीडर्स हैं वो बढ़ेंगे, और इट इज कैन बी एक्ट एज अ डिसिप्लिन विच इंक्रीज द कॉग्निटिव लेवल। उसके बाद बच्चे अगर खुद से करिकुलम लिखा हुआ है तो बच्चे की एम्पैथी बिल्डिंग होगी। देखो मेनी अ टाइम आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी क्या होता है,
आप किसी रोड को क्रॉस कर रहे हो, आपने कोई डॉग देखा, ही इज वेरी वीक या उसे कोई डिजीज है, आपने देख लिया उसे, तो यू आर लाइक ये मतलब यू शो जस्ट सिंपैथी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एम्पैथी होता है जब आप उसके शूज में खुद को रख के देखते हो। लाइक अगर आपने वो डॉग देखा, आपने ये सोचा कि अगर मुझे ये डिजीज हो जाती तो हाउ कैन आई सर्वाइव, लाइक कोई स्किन डिजीज है, तो आप एम्पैथी में क्या कर रहे हो, उसकी जगह खुद को रख के देख रहे हो। और सिंपैथी में यू आर जस्ट शोइंग दैट इमोशनल कनेक्शन, एंड एम्पैथी में वी कैन हेल्प दैट, तो हम एम्पैथेटिकली वर्क कर रहे हैं। और सोशल इश्यूज या जो भी चैलेंजेस हो सकते हैं बच्चों के, वो हमारे चाइल्ड लिटरेचर में क्या हो जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। सो अ बुक वंडर बाय आरजे प्लासियो विच इज अ स्टोरी ऑफ 10-year-old अगस्त, उसके बारे में पूरी स्टोरी गिवन है, तो स्टोरी में बढ़ के नहीं बताऊंगी, या स्टोरी गिवन है तो आप समझ सकते हो कि उसके बारे में क्या होगा, क्या कैसे बर्थ हुआ, क्या कॉन्टेक्स्ट था, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, एनवायरनमेंट उस बच्चे को कैसे मिला, कोई इंजरी तो नहीं हुई है, पोटेंशियल क्या था बच्चे का, किस फील्ड में बच्चा अच्छा था। तो हम ऐसे स्टोरी सुना के चाइल्ड लिटरेचर को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन इंग्लिश क्लासरूम। क्या क्या देखो, डेवलप कैसे करोगे और कैसे यूज करोगे। सबसे पहले तो लर्निंग एंड टीचिंग इज अ फॉरेन लैंग्वेज, जिसके लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, टाइम ज्यादा चाहिए, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद की लैंग्वेज तो है नहीं हमारी, और फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कराने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट भी करने पड़ेंगे। तो किसी भी लैंग्वेज की कम्पीटनेस तक पहुंचने के लिए, कि हम बच्चों को उसमें कम्पीट कर सके, जैसे हम बहुत अच्छे से हिंदी बोल सकते हैं, उसमें कम्पीट करा सके, हम स्टूडेंट को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, सेंसेस का प्रयोग करेंगे, इलस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेट और एग्जाम्पल में भी काफी डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। नहीं तो टेक इट एज अ होमवर्क कि हमें पता चले इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल में क्या है। और बच्चे का जो कक्षा बोर्डम है, किसी क्लास का बोर्डम है, वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, ब्रिज बन जाएगा उनके आइडिया और एक्सप्रेशन के बीच में, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस मिलेगा, समराइज कर सकते हो, रीइंफोर्स कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की इनहेंस हो जाएगी, and it will be very meaningful and effective. Every point can be ensured by teaching like using resources. बच्चे विजुअलाइज करने लग जाएंगे। मैंने कहा बच्चे इमेजिन नहीं करेंगे, बस विजुअलाइज करेंगे। मान लो मैंने पेन दिखा दिया, तो जब उन्हें पेन के बारे में लिखना होगा ना, तो विजुअलाइज कर रहे होंगे, अपनी इमेजिनेशन से नहीं खोज रहे होंगे कि मैंने कैसा पेन का डिजाइन बनाया था। और आपके लर्निंग स्टाइल को भी फैसिलिटेट करने में ये हेल्प करेगा। टीचिंग एड मस्ट बी, कैसे टीचिंग एड होने चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड, अच्छे से प्रिपेयर किए गए हों, वेल प्रेजेंटेड, रीडेबल, लेजिबल, विजिबल टू ऑल। रीडेबल एंड लेजिबल सेम ही है, कि लेजिबल होता है पढ़ने हो गया, जिसमें आप राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छी लिखो, फॉन्ट साइज आपका ठीक हो, एप्रोप्रिएट फॉर्मेट हो, रिलीवेंट टॉपिक के साथ रिलीवेंसी हो, पर्टिनेंट टू द टॉपिक, टॉपिक से रिलेट करता हुआ हो, अप टू डेटेड हो, एंड कंसिस्टेंट विद द लोकल प्रोटोकॉल्स। अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हो तो आप लोकल प्रोटोकॉल्स को भी अनफॉलो या नॉर्म्स को तोड़ोगे नहीं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन से एड्स हैं। पहले हैं प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड क्या होते हैं, वो चीजें होती हैं जिसमें आप लाइट के थ्रू किसी चीज को शो कर रहे होते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्टेड रेफर एज द दोज एड विच इज projected aid refers to those aids which have bright light in the path through a transparent picture by means of lens, and enlarged picture will be shown on projected on the screen of white wall। तो प्रोजेक्टेड क्या हो गए, जिनको आप व्हाइट लाइट में से पास कर रहे हो और उनकी पिक्चर लेंस के द्वारा इनलार्ज करके आप व्हाइट वॉल पे या स्क्रीन पे दिखा रहे हो। नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं जिसके अंदर ऐसा प्रोजेक्शन का कोई भी मटेरियल यूज नहीं किया जाता, जिन्हें आप सिंपली हैंग करके, शो करके, वॉल पे पेस्ट करके आप चीजों को दिखा सकते हो। एंड थर्ड आते हैं हमारे टीचर मेड जैसे फ्लैश कार्ड, पिक्चर, चार्ट, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड, ये सारे स्केचेस हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, टीचर मेड। सबसे पहला हमारा टीएलएम है, क्या है, फ्लैश कार्ड। इट इज अ पीस ऑफ चार्ट पेपर और कार्डबोर्ड ऑन विच समथिंग इज रिटन और ड्रॉन। एक ऐसा, देखो हमारे पास फ्लैश कार्ड छोटे साइज में होते हैं, सबसे पहले तो ये जानो फ्लैश कार्ड्स, और ये बिगनर्स यूज करते हैं, जिसके अंदर फ्लैश कार्ड्स के ऊपर या तो आपके पास कोई पिक्चर लिखी होती है या कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। और फ्लैश कार्ड को फ्लैश इसीलिए बोला जाता है बिकॉज हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों को। तो जैसे फ्लैश यूज होती है, ऐसे ही ये कार्ड दिखाने के लिए यूज होता है, जिसके अंदर बच्चों किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटिंग स्पेलिंग हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, रीडिंग के कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर गिवन हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फ्लैश कार्ड। फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू मेक, आसानी से बनाए जा सकते हैं,
as a medium they give considerable teacher control, they can be under the teacher control, और आप इसे अपने एग्जैक्टली आपके पास कौन से मटेरियल प्रोवाइडेड है आप उनसे क्रिएट कर सकते हो, दे आर इजी टू हैंडल, आसानी से ये प्रयोग में लाए जा सकते हैं, एंड इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट द स्टूडेंट। नेक्स्ट इज आर पिक्चर्स। पिक्चर्स तो हम सब जानते होंगे, पिक्चर्स क्या होती हैं जिनके अंदर देखो पिक्चर्स भी जस्ट लाइक अ फ्लैश कार्ड होते हैं हमारे पास। पिक्चर्स क्या करती हैं, बट इट इज ऑल्सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पिक्चर्स के अंदर भी आप वर्ड्स लिख सकते हो, मटेरियल शो कर सकते हो, वो कैब इनहेंस कराने की कोशिश कर सकते हो। सो पिक्चर्स इज अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ आर कंटेंट दैट इज नोन एज पिक्चर्स। सो पिक्चर्स क्या हैं, ये और भी प्रॉफिटेबल है, इन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। यूज तो हम फ्लैश कार्ड को भी कर सकते हैं, बट पिक्चर्स और भी ज्यादा आइडिया मेकिंग में हेल्प कर सकती हैं, और ये इनसे भी क्या होगा, हमारी पावर ऑफ जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इनहेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाइल यूजिंग पिक्चर द टीचर शुड फॉलो द टेक केयर। कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, पिक्चर शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड हो, अच्छे से बनाई हो, सिस्टमेटिकल हो, एंड एक्यूरेट वर्ड्स उसमें शो किए गए हों, और टीचर्स कैन यूज जुडिशियसली, विच मीन्स टीचर को अपने जजमेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें प्रयोग में लाना है कि कहाँ पे ये प्रयोग लाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे चार्ट्स। चार्ट्स इज ऑल्सो अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ आर लर्निंग कंटेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके अंदर आप पिक्चर्स दिखा सकते हो, ग्राफ दिखा सकते हो, सब्जेक्ट मैटर को शो कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन दिखा सकते हैं, प्रोसेस को ही शो कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ही शो कर सकते हैं, इवन डिस्क्रिप्शन या फिर डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो कैन शोन ऑन द चार्ट। सबसे पहले ये चीज भी जानो कि आप ये 2D फॉर्मेट होता है हमारा, 3D नहीं होता, 2D होता है। अब एडगर डेल क्या डिफाइन करते हैं, एडगर डेल ने आपको ध्यान हो तो फर्स्ट ईयर की ईटी में हमने कम्युनिकेशन में रीड किया था। एडगर डेल डिफाइंस चार्ट एज a visual symbol summarizing or comparing, contrasting, performing other helpful services in explaining subject matter। तो चार्ट क्या हुए, एक विजुअल सिंबल है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए, कंपेयर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं, प्रोसेस शो कर सकते हैं, तो वही हमारा स्टफ क्या कहलाएगा, चार्ट्स कहलाएंगे। Charts can be prepared and presented by the new version structure with help to listed in a one head। ये कह रहे हैं कि वन हेडिंग के अंदर हम अपनी लिस्ट कर सकते हैं अपने पिक्चर्स को। टीचर जो है इनके अंदर नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट कंटेंट वी कैन राइट डाउन, हम पोएम्स वगैरह लिख के भी या इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वी कैन यूज द चार्ट्स। क्राइटेरिया क्या है, साइज इतना लार्ज इनफ हो कि सारे बच्चों से विजिबली देख पाएं, आपके कंटेंट जो है क्लियरली रिटर्न हो, सुटेबिलिटी सूटेबल कंटेंट प्रोवाइड किया गया हो जिसकी नेसेसिटी आपकी कक्षा कक्ष में है। यूजेस ऑफ चार्ट क्या है, मोटिवेट करेगा, कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस की बना के रखेगा, बच्चों की परमानेंट नॉलेज हो जाएगी। यूजेस ऑफ चार्ट, ठीक है, यही था, मोटिवेट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी बना के रखेगा, रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स, फिगर, स्टेटिस्टिक्स, एंड इट विल प्रेजेंट यू सिम्बॉलिकली, सिंबल्स के साथ हमें दिखाया जाता है, ना कि कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ। इट कैन समराइज, इट कैन कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, इट कैन बिल्ड योर थिंकिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ चार्ट student can increase their self and can utilize their prior knowledge with the new knowledge, and it will also enhance the permanency of the topic in the mind of child। नेक्स्ट आते हैं मॉडल। मॉडल इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चर और एनी फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो क्या होते हैं हमारे कक्षा कक्ष में एसेंशियल होते हैं। क्यों, जब किन्हीं चीज़ों को आप चार्ट या 2D फॉर्म में शो नहीं कर सकते, उनका आपको प्रोसेस या फंक्शनिंग शो करनी होती है, जो स्टफ आप यूज करते हो वो हमारा क्या कहलाते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, हमारे कौन कौन से होते हैं, वर्किंग मॉडल होते हैं और हमारे नॉन वर्किंग मॉडल होते हैं। ब्रॉडर वे में कर रही हूँ, जैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी का, फैन का, मोटर का आपको दिखाना है तो वी हैव टू बी मेक इट वर्किंग, और जैसे आपको कोई 3D स्ट्रक्चर दिखानी है तो वो हमारे नॉन वर्किंग हो जाएंगे। जैसे किसी बिल्डिंग का मॉडल दिखाना है आपको तो वो नॉन वर्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड स्केचेस। ब्लैक बोर्ड स्केचेस क्या होते हैं, इट इज अ कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन जिसके अंदर आपके पास रफ ड्राइंग दी होती है, एंड ये काफी हैंडी एड है। इसमें भी क्या करते हैं, आप प्लान करके चार्ट या पेपर मॉडल बनवा सकते हो। देखो ब्लैक बोर्ड स्केचेस, इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, जिसमें ये इट इज ऑल्सो पर्टिकुलर टीचिंग आइटम जिसके अंदर आपको पिक्चर गिवन होती है और आपको लाइंस या कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन की वजह से आपको पूरा मटेरियल गिवन होगा और आप जस्ट उसमें फिलअप करके चीजों को क्या कर दोगे, शो कर दोगे।
है। इट विल ऑल्सो ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द क्लासरूम, जो हमारी कक्षा का बोर्डम है ये उसको भी खत्म करेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैकेनिकल एड, द एड विच कैन बी रन विद द हेल्प ऑफ आर टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज आर मैकेनिकल एड। या तो ये इनोवेटिव है या टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए गए हैं या ये मैकेनिकल है, ये ध्यान रखना। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP शीट्स आपने पढ़ा होगा, वो यूज होती हैं। हमारे मैकेनिकल एड है लिंगुआ फोन, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, दीज आर द मैकेनिकल एड। सबसे पहले आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इट इज ऑल्सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको आप स्लाइड प्रोजेक्टर का इम्प्रूवमेंट बना के आपने क्या कर दिया, ओवरहेड प्रोजेक्टर का नाम दे दिया है। इसके अंदर क्या होते हैं, OHP शीट्स आती है हमारी। फर्स्ट ईयर में आपने ET की बुक में, सॉरी ET की प्रैक्टिकल में आपने OHP शीट्स बनाई हैं। और ये क्या करता है, 90 डिग्री पे हमारे पास व्हाइट स्क्रीन पे पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। ओवरहेड ऐसे प्रोजेक्टर लगा होता है, नीचे आप शीट्स लगाते हो उसके अंदर, और वही शीट्स आपकी वॉल पे या स्क्रीन पे क्या होंगी, शो हो जाएंगी इन लार्ज फॉर्म। क्या फायदे हैं इसके, लाइट फोकस करी जाती है स्क्रीन के ऊपर। टीचिंग जो लर्निंग है, नो नीड ऑफ डार्कन द क्लासरूम, इसे पढ़ाने के लिए कोई डार्कन करने की जरूरत नहीं है। लार्ज स्क्रीन होने की वजह से आप बच्चों को इजीली विजिबल होता है, ऑपरेट करना आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड टीचर कैन बी परमिट टू फेस एक्टिविटी इन द क्लासरूम। टेप रिकॉर्डर वो हमारा कैसा था, विजुअल इन्फॉर्मेशन थी, विजुअल के साथ आप ऑडिटरी भी कर सकते हो उसमें। टेप रिकॉर्डर आते हैं हमारे, इट इज अ काइंड ऑफ कैसा, ऑडिटरी सेंसेस टीचिंग एड। ऑडिटरी का मतलब जिसमें आप हियरिंग वगैरह करके ही कर सकते हो। तो टेप रिकॉर्डर क्या है, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप हियर करके किसी साउंड को या किसी स्पीच को आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो लेसन को कब स्ट्रेस करना है, कब रिथमेटिक बनाना है, कब पॉज करना है, ये सारी चीजें या वॉइस कंपैरिजन हम कहाँ से सीखते हैं, टेप रिकॉर्डर से ही सीखते हैं। डिक्टेशन ऑल्सो कैन बी डन बाय यूजिंग टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट आते हैं लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन वो बच्चे बहुत फेमिलियर होंगे जिनके स्कूल्स में लैंग्वेज लैब्स होंगी। लिंगुआ फोन में क्या होता है, बच्चों को साउंड्स प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए या स्ट्रेस इनोटेशन इंटोनेशन सिखाने के लिए बच्चों को क्या किया जाता है, किसी वर्ड को बार बार बोल के उनके प्रोनाउंसिएशन को बार बार बता के वो लैंग्वेज को क्लैरिफाई करने की कोशिश की जाती है, उस शब्द को, इस वर्ड को क्लैरिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी कैसा है, हमारा ऑडिटरी है, ऑडियो एड है, जिसके अंदर आप सुन के क्या कर रहे हो, चीजों को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियो। रेडियो इज ऑल्सो द टाइप ऑफ ऑडियो एड जिसके अंदर विच वी यूज इन द अर्लीस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप पहले यूज करते थे, इसके अंदर ब्रॉडकास्ट होता था किस चीज का, इन्फॉर्मेशन का। जैसे हमारे पास उस टाइम पे टेलीविजन भी नहीं थे, तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन पूरा ब्रॉडकास्ट चैनल के रूप में आप सब तक पहुंचानी होती थी, देन वी आर यूजिंग एट दैट टाइम वी आर यूजिंग रेडियो। इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। हम जो थे इंटरटेनमेंट भी करते थे रेडियोज वगैरह से, और इसे क्लासरूम में भी पढ़ाया जा सकता, यूज किया जा सकता है जब भी जैसे कोई इंपॉर्टेंट बात या कोई स्पीच आपकी रेडियो पे पब्लिश हो रखी है। मेरिट्स क्या है, चीपेस्ट है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको, वाइडर नेटवर्क तक आप पहुंच सकते हो, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन ठीक कराने के लिए यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट टूल, और इंग्लिश लैंग्वेज में तो ये स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप चीजें बार बार सुन रहे हो तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्डअप होगी। डीमेरिट्स क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कोई उन्हें बता सके, सब बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देने के लिए सबके पास ये होना चाहिए, एंड सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं इस पर जो ब्रॉडकास्टेड हो। नेक्स्ट आता है टेलीविजन। आप कहोगे मैम क्या करा रहे हो, बहुत आसान टॉपिक है। टेलीविजन हमारा ऑडियो एंड विजुअल दोनों एड्स हैं, जिसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, हम एज अ टीचिंग लर्निंग यूज कर लेते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल को। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई पिक्टोरियल फॉर्म, जैसे पिक्चर हो सकती है, मूवी हो सकती है, कोई मैथ्स हो सकता है, स्लाइड्स हो सकती हैं, ये दिखाई जा सकती हैं, जिससे जो चीजें हमारी क्या हो रही हैं, टेलीकास्ट हो रही हैं। ठीक है, तो टेलीकास्ट होने से भी, इससे भी क्या होगा, बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल बनेंगे। तो इट इज अ कैसी एड थी, ये हमारी ऑडियो विजुअल एड, जिसको आप मल्टी सेंसरी यूज कर रहे हो। तो हमारे ऑडियो एड्स जो हमने डिफरेंट पढ़े और विजुअल एड्स जो डिफरेंट पढ़े, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ ऑडियो एंड विजुअल, and it will make our stuff very much concrete and realistic। इस पे देखने से क्या हो जाता है, चीजें बहुत क्या लगने लग जाती है, सच्चाई लगने लग जाती है उनके अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करूं, ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंसेस मोर कंक्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनामिक, एंड इन दिस काइंड ऑफ एड्स we have
two kind of senses can use, audio and visual, and it will stimulate and reinforce the learning. तो ऐसी aids जो क्या कर रही है, हमारी टीचिंग लर्निंग को क्या कर रही है, इनहेंस कर रही हैं, और इसके अंदर हमारी मल्टीपल सेंसेस यूज हो रही हैं. सिर्फ हम क्या यूज नहीं कर रहे हैं, सुनना या देखना ही यूज नहीं कर रहे हो. वी कैन इमोशनली ऑल्सो कनेक्ट विद दैट. ठीक है, डेफिनेशंस गिवन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ सकते हो. एन ऑडियो विजुअल एड इन इंस्ट्रक्शनल डिवाइस विच मैसेज कैन बी हर्ड एंड एज वेल एज सीन, जिसके अंदर आप मैसेज को सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो. पर्पसेस क्या है, क्या पर्पस था, हमारी जो टीचिंग है उसको इनरिच करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन सर्व एन इंस्ट्रक्शनल रोल इन इटसेल्फ, जो इंस्ट्रक्शनल रोल है उसको सर्व करने के लिए, इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए, और हमारे लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए. एडवांटेजेस क्या है, हेल्प्स इन इफेक्टिव परसेप्चुअल, मतलब हमारे जो बच्चों की परसेप्शन है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसको इनहेंस करता है. कैप्चर और सस्टेन्ड बनाता है, बच्चों का ना अटेंशन गेन हो जाता है, इंटरेस्टेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, लर्निंग ईजी हो जाती है. इट विल सेव द एनर्जी एंड रियलिस्टिक सिचुएशंस बच्चे मिलते हैं. एंड इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो एजुकेशन है वो मास मीडिया के थ्रू आप नंबर ऑफ चाइल्ड तक पहुंचा सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड कैसी होनी चाहिए, ये सभी एड्स के बारे में है. मीनिंगफुल हो, कि आप जो भी टीचिंग एड है उसका कोई अर्थ हो, लर्नर्स के लिए पर्पसफुल हो, उद्देश्य नहीं तो इसके अंदर बच्चों को मोटिवेटेड कर सके, एक्यूरेट एस्पेक्ट बताए, सिंपल एंड चीप भी हो. सिंपल का मतलब ये है बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर सके. अगर आपकी टीचिंग एड भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन देगी सो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है. और चीप मतलब सस्ती हो, क्योंकि मैनी थिंग्स आर मेड बाय टीचर्स, तो हम इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं कर सकते हैं. इम्प्रोवाइज्ड हो, मतलब अगर इट नीड्स एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट तो वो भी कर दी जाए. लार्ज क्लास को पढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, अप टू डेट होने चाहिए एंड इजीली पोर्टेबल. ऐसा नहीं है टीचर ने मॉडल तो बना लिया पर वो इतना बड़ा बन गया कि उनके घर से स्कूल तक ही लाया नहीं जा रहा है. नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ एवी, कहाँ से आप ले सकते हो. सोर्सेज की बात करूंगी, गवर्नमेंटल सोर्सेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ वगैरह हो सकते हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो खुद आगे आ रही हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए, कमर्शियल प्रोड्यूसर्स, जैसे बहुत सारी चीजें मार्केट से खरीदते हैं, और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइज कर रहे हैं और अपना चीजें बेचना चाहते हैं, जिन्हें हम देख के भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ए ऑडियो एंड विजुअल एड. तो हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया. ऑडियो एड जिसमें सिर्फ आपकी ऑडियो सेंसेस यूज हो रही है, कौन सी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन एंड हेडफोन. दूसरा आ रहे हैं हमारे विजुअल एड जिसके अंदर हम चीजों को सिर्फ देख रहे हैं, ग्राफिक 3D एड. ऑडियो विजुअल जिसके अंदर आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो. ठीक है, प्रोजेक्टेड और टीवी आ जाएंगे. क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, सिंपल और सोफिस्टिकेटेड. सिंपल ऑडियो विजुअल एड्स है जैसे डिस्प्ले बोर्ड, 3D, ये हमारे कौन से आ जाएंगे, सिंपल प्रिंट मटेरियल. सोफिस्टिकेटेड में आ जाएंगे हम आपके वो ऑडियो विजुअल एड्स जो क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड है. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब है यहाँ पे प्रोजेक्टेड किए गए हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल टू बी फॉलोड फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. कौन से प्रिंसिपल आपको प्रयोग में लाने हैं, किन सिद्धांतों का ध्यान रखना है, सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, हु विल बी द सेंट्रल पॉइंट, द चाइल्ड विल बी द सेंट्रल पॉइंट, अंडर स्पेशल डायरेक्शन एंड लीडरशिप, टीचर की लीडरशिप और उनके डायरेक्शन में एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए यूज किए जाएं. एडवाइजरी कमेटी जो है वो कंसिस्ट करे, मतलब हमारा करिकुलम जैसे डिसाइड किया जाता है उसके साथ कोऑर्डिनेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एड्स भी हो जाती है, तो वो स्कूल भी प्रोवाइड करे. फ्लेक्सिबल हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी अवेल कराना है वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो. वी कैन यूज रेगुलरली इन द क्लासरूम एंड द फंक्शन इज to make the learning and teaching very easy and can be utilized in an organization or institution. नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोजेक्टेड ऑडियो वीडियो एड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर. आप कहोगे मैम दोबारा आ रहे हैं, तो पहले हमने थोड़ा सा डिपिक्शन पढ़ा था इसका, अब हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो कौन सा एड, ऑडियो विजुअल एड. तो हमारा तीसरे नंबर का एड है जिसके अंदर आप क्या करते हो, ट्रांसपेरेंसीज इसमें पुट करते हो, और हमारे ट्रांसपेरेंसीज को क्या किया जाता है, ऑन विद द हेल्प ऑफ लाइट इन एक वॉल पे क्या कर दिया जाता है, शो किया जाता है. कीप द स्क्रीन अबव द हेड, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, बच्चों के सिर से ऊपर हो क्योंकि हमें सबको विजिबल करानी है, फुल व्यू दिया जाए इसके अंदर, और प्रेजेंटेशन जो है ब्लॉक ना हो इस चीज का ध्यान रखना है. लाइट जो है सनशाइन को थोड़ा सा डिम आउट किया जाए, एंड स्क्रीन को ऑफ स्लाइड करने के लिए हम दोनों बातें बता भी सकते हैं उसके साथ साथ. एंड टॉक टू द ऑडियंस नॉट टू द स्क्रीन, और जब भी आप इसे यूज करो आप स्क्रीन की तरफ देख के बात नहीं करोगे, आप ऑडियंस को देख के बात करोगे.
पर्पस क्या है आपका, सब्जेक्ट मैटर सीक्वेंशियल हो जाए, ट्रांसपेरेंसी क्या है, इससे आप क्लास में एक्सपोज कर सकते हो वो चीज़ें भी जो नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कलर हम यूज कर सकते हैं, एंड मोशन पिक्चर्स आर ऑल्सो यूज। फायदे क्या हैं, फायदे बिल्कुल सबके सेम है, लर्निंग इनहेंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ईजी बनाते हैं लर्निंग को, और सेल्फ डायरेक्टेड बनाते हैं, अटेंशन गेन करते हैं, स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद आती है हमारी ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी। जो हमारे ईटी के बच्चे हैं, आप डीएलएड सेकेंड ईयर में हो तो आप सबको पता होगा ओएचपी शीट्स क्या होती हैं। देखो हमारे पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट होती है, अच्छी क्वालिटी की, स्टफ अच्छा होता है जिसका, और 10 बाय 10 इंचेस की ये शीट होती है जिसके अंदर आप प्रिंट कर सकते हो, लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मार्कर, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रोजेक्ट इन आवर ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर मेकिंग इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, मेन आइडिया होना चाहिए, फिगर्स डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल लेटर हो, प्रोपोजिशंस अगर यूज की गई हैं वो यूज करें, जो प्रोपोजिशंस है उनकी जगह पे डायग्राम हम यूज कर सकते हैं, अच्छा और क्लियर मैसेज वहां पे दिया जाए, की मैसेज ज्यादा एम्फेसाइज किया जाए, और कलर्स वगैरह प्रयोग में ला सकते हो। कंडीशंस सॉरी एडवांटेजेस क्या रहेंगी, डे लाइट कंडीशन में इट कैन बी यूज इन अ डे लाइट कंडीशन, सिस्टमेटिक है, वेराइटी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड इजीली अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं ओपेक प्रोजेक्ट। ओपेक प्रोजेक्टर क्या होते हैं, प्रोजेक्टर ऑन विच वी कैन प्रोजेक्ट अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, एग्जांपल बुक्स, पेजेस, ऑब्जेक्ट, पॉइंट, सिमिलर फ्लैट मटेरियल, पोस्ट कार्ड, एनी अदर सिमिलर फ्लैट मटेरियल दैट इज अ नॉन ट्रांसपेरेंट। जो हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल ना हो उन्हें शो करना प्रोजेक्टर के ऊपर, वो होता है हमारा द ओपेक प्रोजेक्टर। ओपेक प्रोजेक्टर में क्या होगा, ऐसे मटेरियल जो हमारे क्या ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, फिर भी हम उन्हें क्या कर सकें, शो कर सकें। ठीक है, इट रिक्वायर्स द डार्क रूम, इनके लिए हमें डार्क रूम चाहिए, और द प्रोजेक्ट इज वेरी लार्ज इन नेचर, एंड उसे मूव करना आसान नहीं है। बेटा फायदे यही हैं, सबके इंटरेस्टेड रहेगा, स्टैम्प्स, कॉइन, स्पेसिमेन इन्हें दिखा सकते हो, जबकि हम ओएचपीज में ये दिखा नहीं सकते हैं, इनलार्ज कर देता है, तो हमारे जो मटेरियल है, जो हैंड रिटन मटेरियल दैट विल बी नॉट यूज्ड, हमें ऐसा बनाने की या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉलेज रिटेन रहेगी, इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, एंड जो टेक्स्ट नॉलेज एंड एबिलिटीज हैं उन पे भी हेल्पफुल है। इसके बाद आते हैं हमारे स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर हमारे स्मॉल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर भी हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, जिनकी पिक्टोरियल फॉर्म या ग्राफ या सीन्स को फोटोग्राफ और रिप्रोड्यूस करके क्या कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है। ये हमारे प्रोजेक्टेड मीडिया है, दे आर इजी टू प्रिपेयर, इन्हें आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। They are still pictures on a positive film, can be processed and mount individually yourself सेंड टू अ फिल्म लेबोरेटरी। ये हमारे पिक्चर्स होते हैं जो फिल्म लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं, जिनका साइज क्या होता है 2x2 का 35 mm कैमरा से। मतलब मैं यहाँ पे स्लाइड प्रोजेक्टर की बात ये कर रही हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ पिक्चर्स होते हैं और उन्हें चला दिया जाता है, उन्हें रनिंग मोशन। फोटोग्राफ का साइज क्या रहेगा, ये 2x2 या 3x4 का रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं। हैंडमेड स्लाइड ऑल्सो कैन यूजेज एसीटेट शीट, सेलोफोन, एड्ज ग्लासेस, प्लेन ग्लासेस और लुमारिंथ ये यूज किए जा सकते हैं। ये याद ना हो तो आप ध्यान रखो सिर्फ कि हमारी फोटोग्राफिक शीट्स होती हैं जिन्हें स्लाइड करके हम स्लाइड प्रोजेक्टर पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो स्लाइड्स में हम क्या शो कर सकते हैं, पिक्चर्स कर सकते हैं, फोटोग्राफ कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप पे लेके गए हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लेके गए हो, तो जहाँ पे आप प्रॉपर सीक्वेंस शो करना चाहते हो अपने मटेरियल की, वी कैन यूज दैट। नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस, रिक्वायर्स ओनली फिल्मिंग, फिल्म करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए या कलरफुल रियलिस्टिक सिचुएशन को इनहेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। एंड इजी टू रिवाइज, रिवाइज करना इजी है, अप टू डेट मटेरियल है, हैंडल करना, स्टोर करना, रीअरेंज करना आसान है, कंबाइंड विद द टेप नरेशन एंड कंट्रोल टाइम विद द डिस्कशन। मतलब ये इनको आप नरेट करते हुए, जैसे मेरी पीपीटी है ये चल रही है, ये भी स्लाइड की फॉर्म में है, तो मैं इन्हें रोक भी सकती हूँ, कंट्रोल भी कर सकती हूँ, और इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप को पढ़ाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे फिल्म स्ट्रिप्स। फिल्म स्ट्रिप्स में क्या होता है, आपने ना पुराने समय में देखा होगा ऐसे पूरा रोल सा चलता है जिसके ऊपर ना पिक्चर्स लगी होती हैं। सो फिल्म स्ट्रिप्स आर अ सीक्वेंस ट्रांसपेरेंट स्टिल पिक्चर्स विद इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ, ये भी कितने फ्रेम की है, 35 mm फिल्म की, एंड टेप रिकॉर्डेड नरेशन सिंक्रोनाइज्ड विद द फिल्म स्ट्रिप्स। Each film strips contain 12 to 18 और more pictures. It is a fixed sequence. 12 से 18 पिक्चर इसके अंदर होती है, और एक रोल होता है जो स्टिल है, और जब उसे आप क्या करते हो, यूज करते हो, तो वो रोल करना स्टार्ट कर देता है।
प्रिंसिपल क्या है, प्रीव्यू फिल्म स्ट्रिप्स बिफोर यूजिंग दैम, जब भी आप उन्हें यूज करे हो किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए पहले आप खुद से उसे देख लो। शो अगेन एनी पार्ट ऑफ फिल्म स्ट्रिप्स रीडिंग फॉर स्पेसिफिक स्टडी, जो आप स्पेसिफिक स्टडी के बारे में बताना चाहते हो सिर्फ वही पार्ट दिखाओ और दोबारा भी दिखा सकते हो। यूज फिल्म स्ट्रिप्स स्टिमुलेट इमोशंस, बिल्ड एटीट्यूड, बच्चों का एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन्हें यूज कर सकते हैं, टॉपिक पे अटेंशन गेन कराने के लिए, एंड आपकी जो स्क्रीन की डिटेल्स है वो टॉपिक की डिटेल्स है वो स्क्रीन पे दिखाने के लिए भी हम फिल्म स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम देखो अगर इतने सारे एड्स हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट एड्स क्यों यूज कर रहे हैं। बेटा कोई स्कूल कोई एड्स आप यूज कर सकते हो या अफोर्ड कर सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी हमारी ट्रेडिशनल वे से चली आ रही हैं, तो हमारे पास जो चीजें इजीली अवेलेबल है वी कैन यूज दैट। टाइप्स क्या है डिस्कशन इन फिल्म स्ट्रिप्स के अंदर, जैसे मेरे पास ये चल रही है ना स्लाइड और मैं डिस्कस कर रही हूँ, और साउंड फिल्म होती है जिसके अंदर मैं अपना साउंड ऑलरेडी ऐड करके रख दूंगी। एडवांटेजेस क्या है, आर कॉम्पैक्ट इजीली हैंडल हो सकते हैं, सीक्वेंशियल होती हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरह काम करते हो, रिकॉर्डिंग यू कैन डन, और इससे क्या होगा इट इज इनएक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्रोजेक्टेड और जो हमारे और OHPs थे, और प्रोजेक्शन की जो रेट है वो भी कंट्रोल की जा सकती है, और लाइट वेट इक्विपमेंट है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स, ग्राफिक एड्स भी इन्हें बोला जाता है। तो ग्राफिक्स कौन से हो जाएंगे, जिनके अंदर आप पिक्टोरियल मटेरियल या पिक्टोरियल फॉर्म्स को क्या कर रहे हो, विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हमारे कौन से एड्स कहलाएंगे, हाँ नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स। चार्ट्स आ जाएंगे, चार्ट्स हमारे क्या, अभी मैंने पीछे आपको डेफिनेशन बताई थी, चार्ट इज अ काइंड ऑफ एड इन विच द पिक्टोरियल, द डिस्क्रिप्शन, information summarizing, introduction और figures और डायग्राम आर शोन टू मेक आवर चाइल्ड इजी टू लर्न, वो हमारे चार्ट्स कहलाएंगे। और मैंने ये भी कहा था, आप साथ साथ ये ध्यान रखोगे दिस इज द 2D फॉर्म। पर्पस या उद्देश्य क्या है, विजुअलाइज कराना, डिफिकल्टी को रिमूव करना, पॉइंट्स को हाईलाइट करना, मटेरियल को आउटलाइन करना और कवर करना, हमारे जो ऐसा कंटेंट है जो टफ है, कंटिन्यूटी बना के रखना, बच्चों की थिंकिंग को स्टिमुलेट करना और स्ट्रक्चर को डेवलप करना। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ चार्ट। फर्स्ट टाइप है हमारा नरेटिव, जब आपने कोई भी फैक्ट्स आइडिया लिखा हुआ है उसको उसके बारे में आपको कुछ बताना है, जैसे हम स्टोरी सुनाते हैं ना, नरेशन करते हैं, दीज आर द चार्ट, जिसके अंदर मान लो अगर मुझे कुछ दिखाना है तो मैं ना किसी फैमिली के मेंबर्स ऐसे बना दूंगी, और फिर ना जैसे मैंने यहाँ पे राम बना दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने सीता बना दी है, ठीक है, फिर मैं इसकी पूरी डिपिक्शन इसके साथ साथ बता रही हूँ, तो वो मेरा नरेटिव चार्ट कहलाएगा। कॉज एंड इफेक्ट चार्ट, जिसके अंदर एक टाइप पे कॉज लिखा हो, दूसरी तरफ हमारा इफेक्ट लिखा हो, जैसे यहाँ पे मैंने कोई कंटेंट ले लिया, मान लो आयरन, ठीक है, कॉज है उसका रस्टिंग, या रस्टिंग के कॉजेज में लिख दूंगी हमारा एयर मॉइस्चर, इफेक्ट क्या हो जाएगा, रस्टिंग विल बी हैपेंड। तो हमारे कॉज एंड इफेक्ट हो जाएंगे, जब आपके पास सिचुएशन मुश्किल है तो आप उसका कॉज और उसका इफेक्ट बता दोगे। चेन चार्ट होते हैं, जब एक चार्ट के बाद एक चार्ट अटैच किया गया हो शो करने के लिए मटेरियल, तो वो हमारे चेन चार्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन चार्ट। इवोल्यूशन चार्ट, जैसे हम छोटे थे तब हमने देखा होगा कि कैसे बटरफ्लाई बनती है, फ्रॉग का पूरा लाइफस्टाइल आपने देखा होगा, तो वो हमारे इवोल्यूशन चार्ट कहलाते हैं, जिसके अंदर ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, मान लो यहाँ पे उसकी पास्ट द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर और ऐसे ही उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर स्ट्रक्चर को डिपिक्ट किया जाता है, तो वो आपकी इवोल्यूशन चार्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्ट्रिप टीज चार्ट। स्ट्रिप टीज चार्ट होते हैं, इसके अंदर पेपर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई जाते हैं, जैसे वैक्स या टेप की या पिन्स की हेल्प से उन्हें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और स्ट्रिप्स और सिंबल्स को क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, और वी कैन इजीली सी दैट कंटेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट में समझ जाओ फ्लिप करना, जिसके दोनों तरफ चार्ट के क्या लिखा हो, मटेरियल रिटन डाउन हो, वो हमारे फ्लिप चार्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पाई चार्ट। जो पाई चार्ट ऐसे बनाए जाते हैं जिसके अंदर हमारे कंटेंट को क्या कर दिया जाता है, इन द डिग्री फॉर्म में क्या कर, एंगल या डिग्री फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, आप उन्हें पाई चार्ट बोलोगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे टेबुलेशन चार्ट। टेबुलेशन चार्ट बहुत ईजी है, जिसके अंदर आपके पास कंटेंट किस में गिवन हो, टेबल्स में गिवन हो, या तो ये कंपैरिजन करने के लिए, डिस्टिंक्शन करने के लिए, या किसी चीज का कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। चार्ट शुड भी कितने का होना चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर का, इससे बड़ा भी हो सकता है, बोल्ड लेटर में हो, विजुअलाइज्ड हो, कंप्लीट सेंटेंसेस इसके अंदर लिखे गए हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्लो चार्ट। जैसे आप माइंड मैप बनाते हो ना, तब जैसे चार्ट गिवन होते हैं आप उन्हें फ्लो चार्ट कहते हो। जैसे मैंने लिखा मैटर,
तो यहाँ पे मैं बता दूंगी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर इसके और पार्ट बना दूंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये दीज आर द काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। इसके बाद आते हैं पुल चार्ट। पुल चार्ट में भी पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं और उन्हें पुल कर करके हम स्ट्रिप्स को क्या देखते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्लैश कार्ड। अभी मैंने पीछे आपको बताया था वो कार्ड जिसके अंदर पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन या लॉजिकल सीक्वेंस गिवन हो और जिसे आप यू कैन मेक इजीली, सेल्फ मेड हो, कमर्शियली प्रिपेयर्ड इज आल्सो देयर। आप ड्राइंग या कोई भी रिटन इन्फॉर्मेशन लिख के बच्चों को शो करते हो तो फ्लैश कार्ड्स कहलाते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ फ्लैश, एक बार आपने शो किया एंड देन आफ्टर दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। पर्पस क्या है, बच्चों को पढ़ाने में, हेल्दी एजुकेशन देने में, स्मॉल ग्रुप या लार्ज डिस्कशन कराने में हेल्प कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स ये ध्यान रखना पूरी क्लास के लिए आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। प्रिंसिपल क्या यूज करोगे, ब्रीफ होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ड्राइंग कार्टून जो भी बनाओ वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। क्या साइज रहेगा, 10 to 12 सेंटीमीटर का इसका कॉमन साइज रह सकता है। इसके बाद इसके जो कार्ड होंगे वो यूज कर सकते हो आप, पिक्टोरियल फॉर्म यूज कर सकते हो, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देता है, ठीक है। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन दो तो कम से कम एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का तो आपको डायग्राम बनाना है। यूज कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन दे सकते हो बच्चों को पहले उस टॉपिक के रिगार्डिंग, आफ्टर दैट आप उसके लिए फ्लैश कार्ड दे सकते हो। इंस्ट्रक्शन देते हुए आप अपने फ्लैश कार्ड्स को बच्चों को दे दोगे और इन फ्रॉम द क्लासरूम, बच्चों को देना ही जरूरी नहीं है, यू कैन शो देम, और उसके बाद बच्चों की रिस्पॉन्सेज आप क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लेंगे एंड उसके बाद रिव्यू देख लेंगे। फायदे क्या क्या है टॉपिक के इंट्रोडक्शन में, स्मॉल ग्रुप को पढ़ाने में, इंफॉर्मेशन को गेन करने में, अटेंशन को गेन करने में, ड्रिल या प्रैक्टिस कराने में, किसी चीज को रिकॉग्नाइज कराने के लिए आप ये मटेरियल यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, लार्ज ग्रुप के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, प्रॉन एंड गेट स्पॉइल्ड इजीली, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, एंड इट विल टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि आपको हर बच्चे तक वो चीजें पहुंचानी है। देन आते हैं पोस्टर। पोस्टर इज ऑल्सो द ग्राफिक मटेरियल जिसके अंदर क्या होता है, जो मैसेज गिवन है वो आपका सेल्फ मेड होता है। सो पर्पस क्या है इसका, टू प्रोवाइड जनरल मोटिवेशन, एस्थेटिक बनाओ, बच्चों को एटमॉस्फेयर दो और क्लास और कम्युनिटी को जोड़ सके, जिसके अंदर आप अपना आइडिया या मैसेज इन्फॉर्मेशन पोस्टर के माध्यम से शो कर सकते हैं। पोस्टर कॉम्पिटिशन्स आर वेरी मच फेमिलियर विद द स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन क्या है, रूल्स क्या है, टू डू अ स्पेशल जॉब, अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, पॉइंट प्रमोट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के काम आएंगे, प्लान्ड होते हैं, सिंगल गैलेंस में आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, बोल्ड लेटर और प्लीजिंग होते हैं, एंड इट विल ऑल्सो रिमूव द बोर्डम ऑफ क्लासरूम। फीचर क्या है, ब्रीविटी, ब्रीविटी का मतलब कंसाइज होना चाहिए, ज्यादा व्याख्या ना की गई हो, सिंप्लिसिटी, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, आइडिया जो आपका रिलेवेंट आइडिया है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो उसके अंदर गिवन हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो और डिस्प्ले मटेरियल करके दिखाया गया हो। फायदे क्या है, अट्रैक्ट करेगा अटेंशन। अब आप जो अलग फायदा होगा मैं वही आपको बताऊंगी। तो क्या फायदे हैं, आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हो सकते हो। देखो अब तक टीचर ने हमें जो दिखाया हम वो काम कर रहे थे, यहाँ पे आपका सेल्फ मोटिवेशन काम कर रहा है एंड यू आर द एक्सप्लेनेटरी। डिसएडवांटेजेस क्या है, इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, ये सबको लॉन्गर टाइम के लिए नहीं कर सकता एंड हमें पोस्टर बार बार क्रिएट करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे कार्टून। कार्टून्स सब बच्चे अवेयर होंगे कार्टून से। कार्टून्स क्या हैं, ऐसे कैप्चरिंग कैरिएचर्स बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, आपको एक सटल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो बाय द कार्टून्स वी कैन, इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ द कंक्रीट मटेरियल विद द डिफरेंट फॉर्म। यहाँ पे आप बहुत डिफरेंट फॉर्म या मीनिंग्स को जब रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं दिखा सकते, रोल प्ले करा के नहीं दिखा सकते, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट के एग्जांपल हैं जिन्हें पेंट करके या प्रिपेयर करके और उनको क्या करके with the help of technology can be formed, तो आप उन्हें कार्टून बोलोगे। Definition, a cartoon is a humorous caricatures which gives a subtle message, and in cartoon features the object and people are exaggerated along with the journal recognized symbol। मतलब उनको लोगो, मतलब लोग ह्यूमंस और उन सिंबल की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है, द क्वालिटी ऑफ ड्राइंग शुड बी हाईली प्राइमरी विजुअल इफेक्टिवनेस। कार्टून ऐसा प्रिपेयर किया जाए कि जो क्रिएटिविटी है वो काफी इफेक्टिव हो और बच्चों को कॉन्सेप्ट से फेमिलियर कराया जाए इंटेलेक्चुअली। फायदे क्या हैं, इनिशिएट करता है, बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। फैंटेसाइज करने की कोशिश की गई है, अगर ऐसा होता तो, जैसे डोरेमोन है ऐसा कोई गैजेट नहीं है हमारे पास पर हम फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्राग्रेशन हो रही है, फैंटेसाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सटायर। सटायर करने का मतलब होता है मूविंग पिक्चर्स देना, एंड एक्सक्राग्रेट करना होता है किसी चीज को इनलार्ज करके शो करना।
नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर इज ऑल्सो द 2D इंफॉर्मेशन and in which the message or the information is written in the form of language and pictures, and this one is also used to make the mass communication to the people. फायदे क्या है, लार्ज ग्रुप को बताया जा सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स कराई जा सकते हैं, अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक जगह दिया जा सकता है. डिसएडवांटेजेस क्या है, इलिटरेट इन्हें नहीं पढ़ सकते, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमें उसका पूरा रिव्यू देखना पड़ेगा. नेक्स्ट आती है हमारी कॉमिक स्ट्रिप्स. कॉमिक स्ट्रिप्स में भी क्या होता है, सीरीज ऑफ पिक्चर्स और सीरीज ऑफ स्केचेस होते हैं जिसके अंदर फुल ऑफ एक्शंस भी शो किए जाते हैं, और ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द चिल्ड्रन विच फील एक्साइटेड व्हाइल सीइंग दैट कॉमिक स्ट्रिप्स. कॉमिक स्ट्रिप्स क्या है, इट इज अ फायर इमेजिनेशन ऑफ चाइल्ड. ये बच्चों की इमेजिनेशन पे करता है, बूस्ट करता है, करेजियस बनाता है, कम्युनिकेशन करता है और विविड कम्युनिकेशन देता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. रियलिटी और इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, बिकॉज वो चीजें हो सकता है रियल ना हो बट इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं. लिमिटेशन क्या है, समटाइम्स दीज कैरेक्टर्स कैन मिसगाइड, क्योंकि ये भी फैंटासाइज हैं, और कॉमिक स्ट्रिप से जो बच्चों की लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ हो सकती है. कॉमिक स्ट्रिप से ये भी है कि ओरिजिनल वर्क कैन नॉट बी शोन. नेक्स्ट आते हैं हमारे एग्जीबिशंस. एग्जीबिशन की मैंने एक अलग से वीडियो भी ड्रॉप कर रखी है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, जिसके अंदर मैंने एग्जीबिशन का पूरा फॉर्मेट एंड फायदे नुकसान सारी चीजें बता रखी हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, हाउ टू यूज. बट यहाँ हम थोड़ा सा क्वाइट जल्दी करेंगे. एग्जीबिशंस क्या है, एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे आप क्लास या क्लासरूम का वर्क या किसी स्कूल का वर्क जब आप लोगों को शो कर रहे होते हो, तो दैट इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ पीस ऑफ वर्क डन बाय द स्टूडेंट, दैट इज नोन एन एग्जिबिट. एग्जिबिट करने का मतलब शो करना, और यहाँ पे सेंट्रल थीम क्या रहेगी, अटेंशन गेन करना सेंट्रल थीम रहेगी. क्लीन एंड लेबल प्रॉपरली पे आप इस पे काम कर सकते हो, और साइज कलर कॉन्ट्रास्ट वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे बनाया है. The exhibition should be so place for more visitor को दिखाने के लिए. See them, the place visit should be a well lighted, जहाँ पे exhibition करा रहे हो lighting up हो, attention gain करो visitor की. Motion and sound you can both uses that. ऑपरेटिव भी लगा सकते हैं आप, जैसे स्विचेस हैंडल्स आप ये कर सकते हो. और एग्जीबिशन के अंदर बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन होती है, और बहुत सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए भी पढ़ाया जा सकता है. फायदे क्या है एग्जीबिशंस के, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को सिखाते हैं, सेंसेस यूज होती हैं, अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट की बात बताता है, ये कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन कराते हैं बच्चों की, कॉन्शियस बनाता है बच्चों को, रिलेशनशिप बनाता है विद द कम्युनिटी, ठीक है. एंड कपल ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्लेजरली स्प्रेड आउट टू द कम्युनिटी, एंड बच्चे क्रिएटिव बनते हैं जब उनकी चीजों को एग्जिबिट किया जाता है. थोरो प्रिपरेशन करनी होगी, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड इट विल ऑल्सो रिक्वायर्ड मच मोर फंड्स. देन आते हैं हमारे पपेट्स. देखो पपेट्स क्या है, पपेट्री शो भी बहुत एक हमारी जो इंडियन कल्चर का काफी पुराना है. पपेट्स क्या होते हैं, puppets are the manipulated with the strings और with the help of the shower, जिसके अंदर जो पर्सन है which is show और performing the puppet, that is known as puppeteer. puppeteer क्या करता है, ड्रामेटाइजेशन करने की कोशिश करता है, मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उन्हें ड्रामेटाइज करता है, और सोशल साइंस की इनहेंसमेंट के लिए हम यूज करते हैं इसे. सो टाइप ऑफ पपेट है स्ट्रिंग, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे धागों से नचाते हुए, तो स्ट्रिंग पपेट आर द पपेट इन विच द बॉडी इज हिंज्ड बाय स्ट्रिंग्स बाय द पपेटियर, ठीक है. इसके बाद आते हैं स्टिक पपेट, ऐसे स्टिक होते हैं उसके ऊपर पपेट बना दिया जाता है और वो उनको नरेशन कर रहे होते हैं. शेडो पपेट आपने बहुत बार देखा होगा, रूम को अंधेरा करके हाथों से ऐसे परछाइयों से चीजें बनाते हैं. इसके बाद आते हैं फिंगर पपेट, आप पपेट को फिंगर में पहन के मूवमेंट करा सकते हैं. फायदे क्या हैं, इंटरेस्ट बिल्ड होगा, नॉलेज ब्रीफ हो जाएगी, इफेक्टिव मेथड है, बच्चों को मोटिवेट करेगा, ऑपरेट करना आसान है. डिसएडवांटेजेस क्या है, ग्रुप कोऑपरेशन चाहिए, इट विल कोऑर्डिनेशन चाहिए जो हम इसे करेंगे, स्किल चाहिए, और स्किल भी हमारी कैसी हो, प्रेजेंटेबल हो. स्किल में यहाँ पे सिर्फ आपको पपेट चलाने की स्किल ना आए, यहाँ पे आपको पपेट के साथ साथ प्रेजेंटेशन की भी स्किल आए. नेक्स्ट आते हैं हमारे डिस्प्ले बोर्ड्स. फर्स्ट है हमारा चॉक बोर्ड. देखो चॉक बोर्ड क्या होता है, या तो अब ये ब्लैक बोर्ड होता है या आप ग्रीन बोर्ड यूज करते हो. chalk board, blackboard और green board is a kind of board which is used in a classroom by showing the important content, write down the name of the topic and इसके अंदर और क्या करते हो आप, अगर डिफाइन करना हो कैसे करोगे, इट इज अ काइंड ऑफ वुडन बोर्ड विच इज पेंटेड ब्लैक और ग्रीन, जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख सकते हो. एंड बिफोर राइटिंग वी हैव टू क्लीन डाउन द बोर्ड. एंड इस बोर्ड से क्या होता है, हम बच्चों को कक्षा में क्लास में रहते हुए
चीज़ों को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय आर हैंड राइटिंग। ब्लैक बोर्ड हैव डिसएडवांटेजेस क्या है, पहले की बात करूं, अब तो हमारे व्हाइट बोर्ड्स भी आ गए हैं, आर देयर। डस्ट करता था, चॉक बोर्ड पूरा टीचर पे डिपेंड करता था, एलर्जी हो सकती थी, और चॉक बोर्ड के लिए काफी आपको लाइटिंग की जरूरत भी पड़ती थी, रिफ्लेक्शन दूर रखे जिससे। एंड कई बार ये होता था डिफरेंट जैसे हम लिखते थे ना, ऐसे साउंड भी प्रोड्यूस करता था, ऐसे ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता था। और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, समटाइम्स द टीचर डू नॉट हैव दैट मच लेजिबल राइटिंग, टीचर की इतनी पढ़ने योग्य राइटिंग ना हो तो भी वो चॉक बोर्ड का प्रयोग अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो टीचिंग टूल, जैसे हमारे विजुअल, फ्रिक, फ्लैप, फ्लैट, कोरियोग्राफी एंड वीडियोग्राफिक बोर्ड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ स्टोरी टेलिंग बोर्ड, पहले ये ध्यान रखोगे। एक फ्लैनल नाम का फैब्रिक होता है, ये पूरा उससे क्या होता है, कवर कर दिया जाता है, और क्या करा जाता है इसके पीछे, स्टोरी टेलिंग के लिए पीछे टॉयज या फ्लैनल के ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं, हमारे दैट इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं, और उसको मूव करके आप क्या कर रहे होते हो, स्टिक कर देते हैं उस पर और आप उसे यूज कर रहे होते हो। हाउ टू यूज प्रिंसिपल इन्वॉल्व द इंटरलुकिंग ऑफ फाइबर्स विद द टू और रफ एरी सरफेस बनाया जाता है, दैट ऑफ द पीसेस pressed on the background with the hard and the vertical will stay। जैसे हमारे कोई भी सामान है उसको आप हार्डली अगर ऐसे कर दोगे, जैसे हम पेंस की वगैरह की हेल्प से, तो वो क्या हो जाएंगे, वहां पे स्टिक हो जाएंगे, और आप यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करके अपनी स्टोरी को अनफोल्ड कर सकते हो। फायदे क्या हैं, परमिट न्यूमरस एंड वेरियस अरेंजमेंट ऑफ विजुअल मटेरियल, हमारे विजुअल मटेरियल को शो करने के काम आता है। चार्ट से थोड़ा सा अच्छा है, कंप्लीट स्टोरी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। मटेरियल जो है एक ही प्लेस पे रहता है। चैलेंज जो भी चैलेंजेस हैं हमारे पोर्ट्रे करने के या एब्स्ट्रक्शन दिखाने के, बेस्ट जैसे मैं बच्चों को बोलूँ कि समझ लो एक राम नाम का लड़का था, तो यहाँ पे दिखाना बहुत आसान है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट इजी, कोस्ट इफेक्टिव है, सॉरी कॉस्टली है, बोर्ड को कई बार ओवरलुक करने का मतलब है हमें बार बार उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, एंड लिमिटेड आइडिया वी कैन शो दैट, और टीचर्स को उसके पे मटेरियल जो भी शो करना है पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसके और भी नुकसान क्या हैं, जो मेथड्स हैं वो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द कंटेंट के लिए इजी नहीं है, और कई बार हम कंप्लीट स्टोरी दिखाने के लिए, पूरी नरेशन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टफ की जरूरत है, जो हो सकता है उस फ्लैनल बोर्ड पे यूज भी ना किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, इंडोर या आउटडोर भी हो सकते हैं। सबसे पहले बुलेटिन बोर्ड पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो शो की जाती है। इसके अंदर पब्लिक फोटोग्राफ, पब्लिकेशन या पोस्टर या न्यूज़पेपर, उनके कटआउट्स यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इवेंट्स को बताता है और स्पेशल एक्टिविटीज को डिपिक्ट करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट इफेक्टिव फॉर इलिटरेट ग्रुप, जो पढ़े लिखे लिए हैं नहीं है उनके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री प्लान करना और प्रिपरेशन करना इट क्वाइट डिफिकल्ट। और बुलेटिन बोर्ड जैसे पिन बोर्ड वगैरह होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो भी मैसेज छोड़ना है वो भी काफी क्या होता है, मैं कहूँ लिमिटेड होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए डोरमेटिक कॉरिडोर्स पे लगाए दिए जाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। और समटाइम्स न्यूज़पेपर तो चेंज हो जाते हैं, बट जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या जैसे किसी स्कूल का कोई नाम आ गया, वो पिक्चर्स वैसी ही रहती हैं उस पर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पैक बोर्ड। पैक बोर्ड इज अ टाइप ऑफ बोर्ड विच कंटेन स्मॉल होल्स टू फिक्स सर्टेन लेटर्स इनटू द होल। यहाँ पे होल होते हैं, उन होल्स के अंदर हम लेटर्स को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। देन आते हैं मैग्नेटिक बोर्ड, नाम से ही समझ आ रहा होगा, जिसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक अट्रैक्टिंग पावर होती है। जब हम वहाँ पे आयरन या कोई से ऐसी चीज लेके आते हैं तो वो उस पर पेस्ट हो जाते हैं। विजुअल मटेरियल है वही इंटरेस्टेड बढ़ता है, बच्चे कॉम्पिटिटिव बनते हैं, कॉम्पिटिनेस बढ़ती है बच्चे की, और मोटिवेटेड रहते हैं, इंकरेज रहते हैं। इसके बाद आते हैं ऑडिटरी एड्स। ऑडिटरी जिसमें सुन के आप काम करते हो, जैसे हमारे कौन से थे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, तो जिसके अंदर आपके पास रिकॉर्डिंग हो या उस रिकॉर्डिंग को आप सुन के अप्रिशिएट कर रहे हो, सुन रहे हो, प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, तो वो हमारे ऑडिटरी एड्स कहलाएंगे। इसमें बताने की कोई ऐसी चीजें हैं नहीं, मैं आपको ये अलग अलग भी बता चुकी हूँ। देन आता है हमारा टेप रिकॉर्डर। अभी मैंने आपको पीछे बताया था टेप रिकॉर्डर क्या होता है, इसमें कंटेंट 2 बार गिवन है तो वो भी देख लेना। टेप रिकॉर्डर इज अ काइंड ऑफ क्या, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हमारे रिकॉर्ड करने में, रिप्रोड्यूस करने में या साउंड को इरेज करने में हेल्प होता है, जिसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक टेप होती है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, वी कैन प्ले, वाइंड, रिवाइंड, रिकॉर्ड एंड पॉज एंड इजेक्ट, वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। यूसेस क्या है, फॉरेन लैंग्वेज को क्लैरिटी से लर्न करने के लिए। ग्रामोफोन्स आर ऑल्सो अ रेडियो ग्रामोफोन, जिसके अंदर भी आपको स्पीच
सुन सकते हो, लर्न कर सकते हो। एक्टिविटी एड्स, दीज आर द एड्स विच इज हेल्पफुल फॉर द एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस लाइक जब आप अपने कक्ष में रह के बिल्कुल बोर हो गए हो तो उस नॉलेज को सीख करने के लिए यू आर गोइंग आउटसाइड योर क्लासरूम, तो दीज आर द एड्स विच आर कॉल्ड एज एक्टिविटी एड। जैसे ट्रिप्स पे लेके जाना, डेमोन्स करना, एक्सपेरिमेंट कराना या ड्रामेटाइजेशन कराना, दीज आर द एक्टिविटी एड। फर्स्ट है हमारा फील्ड ट्रिप्स। मैंने फील्ड ट्रिप की भी एक वीडियो बनाई हुई है, यू विल गेट दैट वीडियो फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ करिकुलम, तो वहां से आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू फील्ड ट्रिप, it is an educational procedure by which students studied first hand object and material by the natural environment. Field trips क्या है? When you are taking your students away from your classroom and went to that situation या फिर that environment by which they can seek their knowledge first hand and by seeing and visualizing itself. तो टाइप्स क्या है फील्ड ट्रिप के? लोकल स्कूल फील्ड ट्रिप, लोकल आप कहीं पे भी ले जाओ, जैसे हम किसी पार्क में ले जाएं, किसी टेम्पल में ले जाएं। कम्युनिटी ट्रिप्स, किसी कम्युनिटी स्पेशल ट्रिप के लिए ले जा सकते हो। एजुकेशनल, किसी एजुकेशन प्लेस को दिखाने के लिए, जैसे साइंस म्यूजियम हो जाएंगे। एंड द नेचुरल हंट, जहाँ पे आप नेचर से बात कराने के लिए, नेचर में फेमिलियर कराने के लिए बच्चों को लेके जाते हो। एडवांटेजेस क्या है? एक्यूट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रियल लाइफ सेटिंग में मिलेगी, मीनिंगफुल रहेंगे। बच्चों को जो डाइवर्जन है वो बहुत कम रहेगा। जैसे बच्चे बहुत बोर्डम फील करते हैं, पर फील्ड ट्रिप पे बहुत ज्यादा इजीली दे कैन ग्रास्प द नॉलेज और इट इज अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट एंड इट विल डिटेन द बोर्डन ऑफ द क्लासरूम। लिमिटेशन क्या है? पहली बात तो बहुत एक्सपेंसिव, आपको पूरा सेटअप भी करना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने कहा ना, आपको वीडियो मिल जाएगी, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो कि आपको फील्ड ट्रिप पे कौन कौन सी चीजों का ध्यान भी रखना है। ओकेजनली एक्टिविटी हो सकती है, सारे टॉपिक इससे नहीं कराए जा सकते। समटाइम्स इट इज नॉट एबल टू अफोर्ड ऑल द चाइल्ड की सब इसे कर सकें और हर बार हमारी फुलफिलमेंट हो जाए ऑब्जेक्टिव की, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अपने रीडायरेक्टेड हो जाते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड रहते हैं वहाँ पे बच्चे, और बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन भी क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यू विल ऑल्सो गेट दिस मेथड फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ करिकुलम एंड यू कैन इजीली सर्च फ्रॉम माय चैनल। तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मिल जाएगा, बिकॉज इन दिस यूनिट देयर इज अ डिपिक्शन इज वेरी लेस, तो हम उतनी ही बात कर रहे हैं। This PPT is also made according to your book. Demonstration method is a kind of method in which the teacher have to demonstrate that stuff in front of the student. So आप उसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलोगे, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, चीजों को डेमोन्स कर रहे हो, चीजों को शो कर रहे हैं, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन में कहलाएगा। फायदे क्या हैं? एक्टिवेट करता है सेंसेस को, लर्निंग इनहेंस होती है, बच्चे इमेजिनेशन से कॉन्क्रीट की तरफ आते हैं, इलस्ट्रेशन मिल जाती है, दे कैन इंगेज एंड दिस वन इज द पार्टिसिपेटरी एक्टिविटी, जिसके अंदर बच्चे एक्टिवेट होके काम कर रहे हैं। ड्रामेटाइजेशन, ड्रामा और डेमोन्स्ट्रेशन में काफी फर्क है। डेमोन्स का मतलब होता है चीजें दिखाना, ड्रामाटाइजेशन का मतलब है इफ यू आर टीचिंग एनी चैप्टर, एनी कैरेक्टर, तो जब आप उसके लिए रोल प्ले करा देते हो या उसको क्या कर देते हो, थोड़ी सी चेंजेस करके हम उनके लिए डायलॉग्स वगैरह लिख के क्या कर देते हैं, उसे प्ले करा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ड्रामेटाइजेशन। रोल प्ले, इट इज ऑल्सो ड्रामेटाइजेशन। प्लेलेट्स का मतलब होता है जब आप छोटे छोटे ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हो और वो कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं। पीजेंट इज अ काइंड ऑफ जैसे झांकियां निकाली जाती है। एंड पेंटोमाइम्स होते हैं हमारे जो, जैसे हमने मिस्टर बीन को देखा है ना, वो बिल्कुल मूक दृश्य कर रहे होते हैं, मतलब जिसके अंदर बोल भी नहीं रहे होते हैं, और आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। टेबलवर्क्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ पेजेंट, जिसके अंदर भी आप क्या करा रहे हो, चीजों को शो कर रहे हो, कैरेक्टर को शो कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है बच्चों के लिए? सबसे पहले हमारे जो कुछ दो होते हैं, एक द ऑब्जर्वर होते हैं और एक पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ऑब्जर्वर उन्हें देख रहे हैं। ड्रामेटाइजेशन से बच्चे खुश हो जाते हैं, टोटली इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों की, कोऑर्डिनेशन, पंक्चुअलिटी, ग्रुप कोहेशन बढ़ता है, क्रिएटिव सेंसिटिव भी बनते हैं बच्चे। नेक्स्ट आती है हमारी ई लर्निंग।
Our next is e-learning tools and their usage in English language. E-learning tools क्या हैं? E-learning tools are those tools which are dependent on technology. Like if we are studying on YouTube, so this is also a e-learning tool in which we need the software, the internet connections, and the technology by which we can see each other and we can learn from that. So internet, YouTube, Skype, Twitter, smart boards, blogs, podcasting, these are the successful tools which are used in learning. Getting to know the current trend in language teaching, because we are learning about the language, so learning the language we need some technology. Like हमने lingua phone के बारे में पढ़ा था, so this is also a part of technology. ऐसे ही जैसे आप YouTube से देख रहे हो चीज़ें, Skype है आपके पास, और भी बहुत सारी applications है by which you can learn English very quickly and you can practice English by them. सो करंट ट्रेंड्स इंक्लूडिंग अ प्रॉपर ब्लेंड. अब ट्रेंड क्या है, ई लर्निंग में आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज की एडवांसमेंट तक भी जा सकते हो. जैसे हमने बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, जैसे कलर को हम ऐसे भी लिखते हैं और कलर ऐसे भी लिखा जाता है. तो इंग्लिश अलग अलग, जैसे अमेरिकन एक्सेंट कुछ और है, ठीक है. इन एक्सेंट्स को जानने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल वे से हटके काम कर सकते हैं. सो दीज ई लर्निंग्स आर फ्लेक्सिबल, वी कैन लर्न. आप ऐसा नहीं है यूट्यूब पे मैं आज क्लास अपलोड करूँ तो आपको ये क्लास आज ही देखनी है, आप अपने एग्जाम टाइम पे भी देख सकते हो. एंड दिस वन इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, तो वो आपको मिलेगी भी. फ्लेक्सिबल स्पेस है, टाइम है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, अपनी पेस पे देख सकते हो. वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड. एंड ड्यू टू ऑल दीज रिसोर्सेज और ड्यू टू ऑल दीज बेनिफिट्स, e-learning is quite important nowadays and e-learning is very effective nowadays. अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो मैं देर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स. बच्चे जो हैं डिस्ट्रैक्ट रहते हैं अपनी लर्निंग से. दूसरा, बच्चे करने कुछ बैठते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं. दे डू नॉट हैव वन टू वन कनेक्शन एंड इट इज जस्ट अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड. एंड बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड लर्निंग इज वेरी मच अपग्रेडेड, learning is very मच मोर एज कम्पेयर टू ई लर्निंग, क्योंकि वन टू वन कनेक्शन होने की वजह से एक्स्ट्रा एफर्ट टीचर कैन डेवलप. बट यहाँ पे आपको सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा है. इफ यू आर अ सेल्फ लर्नर तो आपके लिए ई लर्निंग बहुत अच्छी है. बट अगर हम ट्रेडिशनल से अप्रोच से बात करें तो टीचर्स का रोल बिल्कुल ही डिसेमिनेट हो गया है. वी कैन कंक्लूड दैट एफिशिएंसी ऑफ ई लर्निंग कैसे इन्हेंस कर सकती है, और टीचिंग एंड लर्निंग में ग्रामर सिखा के, वोकैब सिखा के, डिक्शनरी का प्रयोग करवा के, मेंटल एबिलिटीज को इन्हेंस करके, पेडागोलॉजिकल स्ट्रेटजीज से काम करा के. एंड दीज ऑल आर द ट्रेनिंग मेथड बाय विच ई लर्निंग कैन हेल्प लर्नर टू मेक देयर लर्निंग वेरी इफेक्टिवली. Next is our activities in language learning: dialogue, guided speech, extempore, literary, word formation, language game. फर्स्ट है हमारा डायलॉग. देखो डायलॉग क्या होता है, जब भी आप कोई प्ले कर रहे हो, रोल कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, तो जो स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए द वर्ड यू आर यूजिंग दैट इज नोन एज डायलॉग. तो डायलॉग क्या हुए, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए व्हेन वी आर प्लेइंग द रोल, दैट स्पेसिफिक वर्ड्स, that specific word on that situation is known as our dialogue. तो डायलॉग में पूरी हार्नेस किसके पास है, डायलॉग राइटर के पास है. तो हमारे डायलॉग राइटर कौन है, हमारे टीचर हैं. डायलॉग एज ए इंटरेक्शन की तरह कार्य करता है, पेडागोजी की तरह कि हम दूसरों को समझे, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने डायलॉग बनाए. एंड डायलॉग राइटिंग इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट. सो हम डायलॉग में क्या होता है, हम वर्बल कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली डायलॉग हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है. डिस्कशन के अंदर आप ये कर सकते हो, सेटअप आपको मिलता है, वन टू वन कन्वर्सेशन होती है इसके अंदर. एंड डायलॉग्स के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, प्रोटोकॉल्स लाइक इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर कि आपको ये वर्ड्स ही फॉलो करने हैं, और देयर इज अ टाइम लिमिट ऑल्सो. नेक्स्ट आता है हमारा रोल प्ले. रोल प्ले क्या होता है, जब भी आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई है, सो एनीवन हु इज द नरेटर ऑफ दैट स्टोरी और एनीवन हु इज द परफॉर्मिंग रोल ऑफ दैट पर्सन, दैट आइडियल और दैट सिचुएशनल. तो जो टीचर ने स्क्रिप्ट लिखी है उसके लिए आप स्पेसिफिक पर्सन जो भी कार्य कर रहे हैं वो उसका रोल प्ले कर रहे हैं. नेक्स्ट सिचुएशन आती है हमारे डिस्कशन. डिस्कशन से भी हमारी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होगी. डिस्कशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ टॉपिक, तो हम सब उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपने व्यू पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज आर
डिस्कशन सेशन। इसके बाद आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, दो चीजें याद रख लो, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू। इंटरव्यूअर कौन होता है, जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, और इंटरव्यू कौन होता है, जो इंटरव्यू दे रहा है। सो इट इज अ 1-to-1 कन्वर्सेशन इन विच बाय while interviewing while interview is conducting, then the person have to build 1-to-1 communication and that communication is very much interactive। और यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटरमेंट की तरफ आप जाओगे। इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस। क्वेश्चन आंसर सेशंस आल्सो हैव द एक्सपर्ट पैनल एंड द जो आंसर कर रहा है। तो हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपर्ट पैनल होता है जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, एंड जो हमारा कैंडिडेट होता है ही और शी हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ से भी लैंग्वेज लर्निंग इनहेंस होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सिचुएशन। सिचुएशन होता है अ टीचर हैव टू पुट द स्टूडेंट इनटू अ सिचुएशन। लाइक मैं आपको ये बोल देती हूँ कि यू आर डीलिंग विद अ shopkeeper and you have to purchase some items, so you have 500 rupees, so you have to convey in the terms of English language only। तो this is the situational part जिसके अंदर आपको किसी एक सिचुएशन के अंदर रख दिया जाएगा और आपको क्या करना होगा, वहां से कन्वर्सेशन करनी होगी। कोलेक्टिव, कोलेक्टिव होता है इट इज एक्टिविटी ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों यहाँ पे काम कर सकते हैं। रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे हमें रिसेप्टिव पॉइंट क्या करने हैं, चेंज कर लेना है। मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, हम एज अ स्पीकर थे तो हम लिसनर बन जाएंगे और लिसनर थे तो हम स्पीकर बन जाएंगे। सपोर्टिव का मतलब होता है लाइक इफ आई एम कन्वेइंग द डायलॉग्स, तो समवन इफ आई एम फॉरगेटिंग या कोई भी मेरी लैकिंग रह रहा है तो कोई मुझे बता दे तो वो मेरा सपोर्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होते हैं ऑल द रिस्पॉन्सिव्स कलेक्टिवली। देन आता है पर्पस, हाउ डायलॉग राइटिंग इज प्रमोटिंग आवर इंग्लिश लर्निंग, तो ये हमारा पर्पस हो जाएगा। इसके बाद हमें ट्रांसक्रिप्शन और एक कंप्रीहेंशन दे रखा है, इसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ बातचीत बताई गई है, कैसे कैसे हम बात कर सकते हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसे पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो। ये ट्रांसक्रिप्शन है, आप अपनी कोई भी चैट भी लिख सकते हो। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लाइक यू हैव टू राइट डाउन द ट्रांसक्रिप्शन और यू हैव टू राइट डाउन द स्क्रिप्ट, तो आप अपने पास से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। सो द लर्नर इन द ट्रांसक्रिप्ट इंगेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी पीछे कि जैसे लेजी बोल रही है, टी बोल रहा है, फिन बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि दीज कैरेक्टर्स आर इंगेजिंग टू ईच अदर एंड इफ वन इज स्पीकिंग तो उसके बाद हमारा जो लिसनर है उसको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसे ही हमारी लर्निंग जो है फोस्टर होती रहेगी और हम इन डेप्थ लर्निंग कर पाएंगे। सो इनकम्प्लीट डायलॉग्स क्या होते हैं, द डायलॉग्स विच आर नॉट कंप्लीटेड। और इनकम्प्लीट में क्या हो जाएगा, हमारी ट्रांसक्रिप्ट पूरी नहीं की गई है, हम कंप्लीशन अपनी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सेमी कंप्लीट डायलॉग होते हैं जहाँ पे एक तो नाम लिख के, जैसे मैंने लिखा अनामिका और पूरा छोड़ दिया, तो वो मेरा इनकम्प्लीट डायलॉग हो जाएगा। एंड सेमी कंप्लीट हो जाएगा जब मैंने कुछ चीजें बोल भी रखी है और उस पर आपको फिल करके पूरा करना है। सो देखो, दिस वन इज इनकम्प्लीट, दिस वन इज अ सेमी कंप्लीट, ओके। दिस इज द चैट ऑफ काशवी एंड यश। इन सच वे टीचर क्या कर सकता है, सेंटेंस फुलफिलमेंट सिखा सकता है, बच्चों को इंकरेज कर सकता है, सिचुएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ आ जाएगा, एंडिंग एंड क्रिएटिंग सेंटेंस बच्चों को समझ आ जाएंगे, एंड दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड जहाँ पे डायलॉग में वो ज्यादा बात करना भी सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का मतलब ही, मकसद ही ये है कि हम इंग्लिश में बात करना सीखें। नेक्स्ट आती है हमारी गाइडेड स्पीच। स्पीच आप जानते होगे, एन ओरेटरी मैसेज, मौखिक रूप से देने जाने वाला संदेश। द ओरेटरी मैसेज इज नोन एज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दैट इज नोन एज आर स्पीच। गाइडेड स्पीच में सिर्फ इतना ही है, इफ यू आर गिविंग द स्पीच इन द प्रेजेंस ऑफ सम गाइडेंस ऑफ योर टीचर, योर एल्डर, द एक्सपर्ट, दैट इज नोन एज योर गाइडेड स्पीच। सो गाइडेड स्पीच में हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होता है, टीचर इज द गाइडर एंड स्टूडेंट्स आर द ऑरेटर ऑफ और डिलीवरर ऑफ दैट स्पीच, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, जैसे हमने किसी पॉलिटिशियन को सुना होगा, आप बात करते देखते हो, तो वो ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं या कुछ अपना कंटेंट मैटर लेके आते हैं जिसपे उन्हें बात करनी होती है, एंड इफ दैट स्पीच इज गाइडेड बाय एनीवन, तो वो हमारी कौन सी स्पीच हो जाएगी, हमारी गाइडेड स्पीच हो जाएगी। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक होता है हमारा ऑडियंस जो हमारी क्या कर रहे हैं, बात को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक हमारा क्या होता है, स्पीच देने वाला, द स्पीकर। तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी, एंड जो हमारा दोनों चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, द स्पीच एंड ये स्पीच भी हमारे हमेशा ओरेटरी मैसेज होते हैं। ओरेटरी मतलब मुंह से ऑरली बोले जाने वाले मैसेज को। स्पीच इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द लर्नर एज इट लिटरेरी एक्टिविटी। लिटरेरी एक्टिविटी है तो ये भी इंग्लिश लर्निंग को इनहेंस करने में हेल्प करेगी। अब आपको गाइडेड स्पीच करनी कैसे है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज योर टॉपिक वेल।
इफ यू आर गिविंग सम स्पीच ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, तो आपको वो टॉपिक चूज करना पड़ेगा जिसपे आप अच्छे से बात कर पाओ। फिर है पर्पस ऑफ थीसिस, मतलब पर्पस, फुल पर्पस, आप उसका उद्देश्य बताओगे कि आप क्यों करना चाहते हो, कैसे इंक्रेज हुए, कैसे आपने टॉपिक चूज किया है। Then get organized. We have to collect all the data, your thoughts, your quotations, your review, your सपोर्ट, या जो भी चीजें हैं, आपका मैसेज जैसे भी आप बनाना चाहते हो, आप उसे पूरा ऑर्गेनाइज करोगे। गेट परसुए, परसुएन भी क्या होती है, कार्ट होती है जिसमें आप क्या करते हो, 3 चीजों को फॉलो करते हो, और ये 3 किसने दिए थे, प्लेटो का ट्रायंगुलर, प्लेटो का ट्रायंगल बोला जाता है जिसे एथोस, पैथोस एंड लोगोस। इन 3 चीजों का ध्यान रखोगे तो आप अपने स्पीच पे कभी भी पीछे नहीं रह सकते हो। एथोस होते हैं अपना डाटा स्वयं से कलेक्ट करना, पैथोस होता है कि आपको डाटा ऐसे देखना है, क्रेडिबिलिटी ऑफ अदर, मतलब फर्स्ट है क्रेडिबिलिटी ऑफ योर, कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अपने बारे में सोच रहे हो और अपने अकॉर्डिंगली उस स्पीच को प्रिपेयर कर रहे हो, जो हमारी वो प्लानिंग स्टेज पे आ जाएगा। दूसरी बात आती है हमारी पैथोस। पैथोस में क्या होता है, आप दूसरों की क्रेडिबिलिटी भी देख रहे हो कि अगर मान लो मैं यही आपको समझा रही हूँ तो आपको समझ भी आ रहा है नहीं है, तो वो मेरी पैथोस क्रेडिबिलिटी हो जाएगी। एंड लोगोस होता है बी लॉजिकल, इफ यू आर लॉजिकल सो नो वन कैन डिनाई और नो वन कैन डिफीट यू। ये भी लर्नर को पता होना चाहिए कि हमें तीनों चीजों का ध्यान रखना है। चूज वर्ड वाइजली, आपको जब भी अपने ऑडियंस के सामने बोलना है तो ऐसे बोलना है कि ऑडियंस को सारी बातें समझ आए। बी क्लियर, बी कंसाइज एंड ऑडिबल। देन नेक्स्ट, फोकस ऑन योर मैसेज। अगर आपको कोई रीडायरेक्ट करने की भी कोशिश करता है तो भी आपको अपने पाथ पे बने रहना है। यूज इंक्लूसिव टर्म फॉर इंडिविजुअल। जैसे इंक्लूसिव टर्म का मतलब क्या है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं वी बोल सकती हूँ, माई स्टूडेंट बोल सकती हूँ, आर ग्रुप बोल सकती हूँ, ऐसे हम स्पीचेस यूज करेंगे। देन प्रैक्टिस डिलीवरिंग, आप स्पीच देने से पहले कई बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो व्हाइल डिलीवरिंग द स्पीच। सो इट इज ऑल अबाउट आवर यूनिट 4th। तो यूनिट 4th में हमने क्या जाना, व्हाट आर द रिसोर्सेज, हाउ दीज रिसोर्सेज आर हेल्पफुल, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। हमने प्रोजेक्टेड पढ़े, नॉन प्रोजेक्टेड पढ़े, टीचर मेड पढ़े, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी थे जो एक्टिविटी एड थे, लाइक एक्सकर्जन हो गया, फील्ड ट्रिप्स हो गया। देन इसके बाद हमने ड्रामेटाइजेशन पढ़ा है, ड्रामेटाइजेशन में हमने रोल पढ़ा है, डिस्कशन पढ़ी है, डिबेट पढ़े हैं, और हमने पढ़ा है स्पीच के बारे में। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन। अगर इसके बाद भी आपको कोई ऐसी चीज रह जाती है जो समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। आफ्टर दैट आपकी सारी क्वेरीज लेने के बाद मैं एक वीडियो बना दूंगी, या इसी कंटेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी। एंड ऑल्सो आई ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द डाउट्स. So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. I hope you like this session. Don't forget to like and share. Bye bye. Take care.